Good morning to all of you. Voice is clear? Good morning. So in last class, we were discussing about Gandhi. So we are going to discuss the same topic. Okay. So today we have to discuss the movements that were started by Gandhi in order to secure India's independence. That is the topic. But before that, I would like to just shed some light on aspects of historiography, right, on Gandhi. Basic idea, not in detail, okay? So I'm going to discuss a basic idea about historiography on Gandhi, right? This is important to understand because when there will be a holistic theme based question, so this idea will help you in writing the answers, ठीक है ना? So that is what historiography, a basic sense we are going to discuss. Historiography, ठीक है ना? There are different branches here, different schools of history, and we are not going to discuss each and every one, but in simple terms, I am writing here two uh, different schools, and you can easily relate. One is colonial historians. इतना तो आप समझ सकते हो, इसके लिए कोई historiography के सेंस की जरूरत नहीं है. So one group is the group of colonial historians, ठीक है ना? एक तो ग्रुप ये हो गया, group of colonial historians, ठीक है? And the second group is the group of Indian historians who will counter the view or the approach of colonial historians. ठीक है ना? This is a simple idea. And since we study Bipan Chandra book, class 12th modern India, so basically we will look at the outlook of Bipan Chandra. ठीक है ना? जैसे 1857 के revolt में भी मैंने बताया था, that was it a mutiny or first war of India's independence? What will be your opinion? तो मैंने क्या बताया था? It is somewhat between. Okay, ये revolt से कुछ ज़्यादा है, mutiny से ज़्यादा है, but it is less than the India's war of independence. So this is Bipin Chandra's outlook. So this we need to understand. Now colonial historians, okay, will say, basically we are talking with respect to Gandhi, they will say that what is their opinion about Indian national movement, the opinion of colonial historians. So generally say that there is no, what the colonial historians outlook, they will like to or they will try to demean Indian national movement, or they will try to glorify Indian national movement. They will try to demean. Simple idea. देखो, the colonial historians will try to demean, ठीक है? And revolt of 1857 को mutiny क्यों कहा? 1857 को mutiny. They were trying to demean, ठीक है? क्योंकि अगर ज्यादा ग्लोरीफाई करके प्रेजेंट करेंगे तो उनकी वीकनेस सामने आएगी. So they will like to demean. So they will like to demean our Indian national movement, okay? And they will say that Indian national movement is basically, okay, a conflict between different stakeholders of power. They were fighting for political concessions, okay, from the British government. They were fighting for power. Different groups, there were different stakeholders. Colonial historians का ये कहना है कि there were different stakeholders. For example, Indian National Congress is one stakeholder. Got it? अच्छा, Indian National Congress में भी क्या है? Okay, there is one group that is moderate, there is another group that is called extremist. इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर भी क्या है? सीएसपी, आगे बताऊंगा आपको, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी. वन ग्रुप इज द ग्रुप ऑफ सोशलिस्ट्स, ठीक है? फॉर एग्जांपल जवाहरलाल नेहरू ओपनली सेड दैट आई एम अ सोशलिस्ट. इसी तरह से एक दूसरा ग्रुप है, दैट इज कम्युनिस्ट. कम्युनिस्ट, ठीक है ना? इंडियन नेशनल कांग्रेस में वन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी इज गांधी, जो आगे चल के इंडियन नेशनल कांग्रेस ही छोड़ देंगे. गॉट इट? इंडियन नेशनल कांग्रेस में दूसरा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी कौन है? सुभाष चंद्र बोस, who will later form another party forward block 1939. तो कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने देखो किस तरह से चीजों को मिस इंटरप्रेट करना शुरू किया. उन्होंने कहा कि देयर वर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ पावर एंड दे वर इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर. बेसिकली ये पावर स्ट्रगल था. वो ये कह रहा है कि सब चाहते कि सत्ता हमें मिल जाए, पावर हमारे हाथ में आ जाए, ठीक है? सो दे आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर एंड they are fighting to get political concessions from the British government. They were fighting to get what? Political concessions or relaxations from the British government. ठीक है? वो political participation चाहते थे.
They want political participation, they want share in political power. वो चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करे, उनको शेयर दे पॉलिटिकल पावर. ओके, सो दे वर नेगोशिएटिंग फॉर दैट. This is the approach of the colonial historians, that they were basically negotiating to get the largest share in the political power. ठीक है, कि सत्ता में हम आ जाए, ठीक है, लार्जेस्ट शेयर हो पॉलिटिकल पावर का. ओके, गांधी का रोल क्या है? Colonial historians will say that Gandhi was basically fighting to get further political concessions or relaxations. देखो किस तरह से चीजों को घुमा रहे हैं वो. They are saying that Gandhi was basically what? Gandhi was also fighting to get further political concessions or relaxations. Gandhi इसके लिए fight कर रहे थे, further political relaxations or concessions. And they will say that British government gave political relaxation. Okay, British government gave political concession. Even the British government was ready to give freedom, and British government gave freedom by a liberal act, that is the Indian Independence Act 1947. देखो बातों को कैसे घुमाया. कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आखिर इनकी पॉलिटिकल कंसेशंस की डिमांड को माना. ब्रिटिश गवर्नमेंट परेशान थी इन लोगों के झगड़े को सॉल्व करने के लिए, और फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनकी बात मानी. एंड व्हाट हैपेंड? By the Liberal Act of Indian Independence Act 1947, India got independence. So it was all, the credit goes to British government. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट वो लिबरल एक्ट पास किया, वो पॉलिटिकल कंसेशंस इंडियंस को दिए, और इस तरह से इंडिया आजाद हुआ. सो व्हाट दे आर डूइंग? They are trying to demean the role of Indian National Congress. They are trying to demean the role of Gandhi in Indian National Movement. इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि whenever you are putting question mark on any personality in Indian National Movement, always remember that each and everyone has equal contribution. गांधी का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन था जितना सुभाष का, जितना पटेल का. हमें इस बात के लिए लड़ना नहीं. मेरा एक दोस्त है, उसकी एक छोटी सी बेटी है वर्णिका. एक बार मैंने पूछा, बेटा आप किसको ज्यादा प्यार करते हो, पापा को या मम्मी को? तो मुझे लगा कि फंस जाएगी क्वेश्चन में, बट उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो दोनों को बराबर प्यार करती हूँ. सी इज 5 ईयर ओल्ड. मेरी बात समझ गया ना? कई बार मैंने पूछा, बट कभी भी उसका जवाब ऐसा नहीं हुआ कि सी इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स फादर और मदर. सी सेज आई लव इक्वली बोथ ऑफ देम. सो वी शुड आल्सो रेस्पेक्ट इक्वली. ठीक है, चाहे वो मॉडरेट्स हो, चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट हो, चाहे वो रिवोल्यूशनरी हो, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो लोग हो, दोज पीपल हु आर द अननोन फेसेस ऑफ दिस फ्रीडम स्ट्रगल, ऑल हैव द इक्वल कंट्रीब्यूशन. ठीक है, किसी किसी के बारे में तो हमें पता ही नहीं चला, उसका भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है. डिफरेंट आइडियोलॉजीज प्लेज द इक्वल रोल, बिकॉज ये एक प्रोपेगेंडा है जिसको कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने फैलाया. नाउ व्हाट बिपिन चंद्रा सेज, बिपिन चंद्रा सेज दैट बिपिन चंद्रा विल गिव सम counter argument. Bipan Chandra will give some counter argument, and these counter arguments are important for us. Bipan Chandra will give some counter arguments, and these counter arguments are important for us. And what are these counter arguments? ये counter arguments क्या है? So, very few facts here I will discuss with you. He is saying that it's true that British government gave political concessions to the Indians. ये बात सच है कि political concessions दिया. But do you think that British government gave these political concessions willingly? जानबूझ के दे दिया? No. ठीक है. Indian groups mounted pressure on the British government, and as a result of that, we got political concessions or relaxations. Example देखो, revolt of 1857. Did it mount pressure on the British government? Yes, because before this, who was ruling? A corporate was ruling, company was ruling. That was a trading company. That became a ruling company. That promoted corporate violence, that promoted corporate conspiracy in India. But when revolt of 1857 took place, what happened? Power was transferred to crown, and then crown promised that we will treat Indian subjects equal to the British subjects. But was this promise true? क्या ये promise true था? नहीं, this promise was not true. 1858 में crown rule was established, and in 1885 Indian National Congress was formed. And what about the first 20 years of formation of Indian National Congress? From 1885 to 1905, Indians were making demands.
These were social demands, military demands, political demands, administrative demands, economic demands. Did these demands addressed by British government? क्या इस डिमांड को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एड्रेस किया properly? No, they did not address those demands properly. Okay, whatever they gave us, the political concessions that the British gave us, these political concessions were inadequate. They were not in sync with our demands. हमें जो भी political concessions मिले वो क्या थे? Inadequate थे. They were not in sync with our political demands. मेरी बात समझ रहे हो? ध्यान से समझना इस बात को, because now UPSC asking questions that are holistic theme based question. इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है? The second important point is what? When Swadeshi movement started, that is anti-partition of Bengal movement. लोगों की डिमांड क्या थी कि द डिसीजन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल शुड बी एनल्ड, उसको खत्म करो. बट डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट लिसन टू द डिमांड्स ऑफ दिस पीपल? नो. तो लोगों ने क्या किया? एक मूवमेंट स्टार्ट किया. एंड व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव इन दिस मूवमेंट? इस मूवमेंट में ऑब्जेक्टिव क्या था? डिमांड फॉर क्या था? स्वराज. यही था ना, स्वराज ही था ना. ठीक है. इन स्वदेशी मूवमेंट द पीपल डिमांडेड फॉर स्वराज. मॉडरेट मीनिंग आपको पता ही है. ठीक है, स्वराज विद इन ब्रिटिश रूल. बट वाज दिस डिमांड इनकॉर्पोरेटेड बाय द ब्रिटिश? नो. So Swadeshi movement mounted pressure on the British people, and instead of accepting our demands, British started playing the trick of divide and rule. हमारी डिमांड को मानने की जगह वो क्या करने लगे? डिवाइड एंड रूल की ट्रिक को अप्लाई किया उन्होंने. फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, यू ऑल नो. सेपरेट इलेक्ट्रेट सिस्टम गिवन टू मुस्लिम्स बाय द एक्ट ऑफ 1909. ये क्या है? कॉम्युनल, कॉम्युनलिज्म. दे ट्राई टू प्रमोट कॉम्युनलिज्म इन इंडिया. तो ये बात तो कहना गलत है कि हमारी डिमांड को उन्होंने मान ली. ऐसा नहीं हुआ. देन व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? इंडियंस वॉलंटियर्ड फॉर सपोर्ट ऑफ ब्रिटेन. गांधी कलेक्टेड फंड्स, डोनेशंस फॉर ब्रिटेन, एंड इंडियंस स्टार्टेड अ मूवमेंट दैट इज होम रूल लीग मूवमेंट. वहां भी हमारा डिमांड क्या था? स्वराज, होम रूल. क्या वो होम रूल हमें मिला? यस. अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रही है. हेलो हेलो. हाँ, बैटरी चेंज करता हूँ, शायद ठीक हो जाए. इज इट ओके नाउ? बताना फिर अगर वॉइस ब्रेक होती है तो. ठीक है. इज इट क्लियर? ठीक है. ओके. तो देखो, मैंने क्या कहा कि ड्यूरिंग होम रूल लीग मूवमेंट हमारी डिमांड क्या थी? स्वराज. तिलक सेड स्वराज इज माय बर्थ राइट. ठीक है. एंड आई शैल हैव इट. ये तिलक ने कहा था. बट क्या हमें स्वराज मिल गया? क्या नहीं. ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगेन व्हाट वाज आवर ऑब्जेक्टिव? स्वराज विद इन 1 year inside the British rule, possible, if not possible outside the British empire. क्या हमें स्वराज मिल गया? क्या नहीं मिला. तो हाउ द ब्रिटिश कैन से that we were accepting your political demands? Okay, this claim is false. पहली चीज है. यानी whatever the concessions British administration, British government gave it to Indians, these were inadequate. They were not in the sync with Indian political demands, and whatever the concessions were given to the Indian people, these concessions were not given to the Indian people willingly. Got it? Indians mounted pressure on the British government, and as a result of that, the political concessions were given. तो हमने counter किया ना argument को. So write this point. Bipin Chandra says counter argument में this is very important point. Right, point 1, that the concessions that were given by the British Indian government to the Indians, the concessions that were given by the concessions that were given by the British Indian government
to the Indians were inadequate. The concessions that were given by the British Indian government to the Indians were inadequate. फिर connect करके दूसरा point लिखो. These concessions or relaxations were not in sync with the these concessions or relaxations were not in sync with the Indian political demands. These concessions or relaxations were not in sync with the Indian political demands. Okay. Again, write one more point. Connect करके फिर से लिखिए that Indians got some limited political relaxations or concessions. Indians got some limited concessions or relaxations, and this was possible due to the pressure mounted by and this was possible due to the pressure mounted by Indian national movement. Due to the pressure mounted by Indian national movement. It was possible due to the pressure mounted by Indian national movement. ठीक है, ये जो कुछ भी हुआ वो कैसे हुआ? Due to the pressure mounted by Indian national movement. Right, one more point, that Gandhi's role is very much significant in this process because Gandhi's role is very much significant in this process because he gave a proper direction. Gandhi's role is very much important because he gave a proper direction. He gave a proper direction to the Indian national movement. He gave a proper direction to the Indian national movement, and that is why Gandhi's role is important. Got it? He gave a proper direction to the Indian national movement. गांधी ने वो प्रॉपर डायरेक्शन कैसे दिया ये मैं आपको समझाऊं, ठीक है ना? तो देखो, हाउ गांधी गेव अ प्रॉपर डायरेक्शन. तो देखो, ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर. दिस टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. सीधा सीधा नहीं है बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल, राइट, प्रेशर कॉम्प्रोमाइज प्रेशर मॉडल. वन मॉडल इज प्रेशर कॉम्प्रोमाइज प्रेशर मॉडल. Pressure compromise pressure model. This is one model. Pressure compromise pressure model. Here pressure means what? Mass pressure or the mass movements. It means what? Mass pressure or mass movements. Use of mass pressure or mass movements. Clear? Mass pressure or mass movement to get further concessions. To get further concessions. To get further concessions. Yani use of mass pressure or mass movement to get further concession. Got it? Now, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था? फॉर एग्जाम्पल स्वदेशी मूवमेंट. गांधी यहाँ थे? नो, गांधी वॉज नॉट हियर. स्वदेशी मूवमेंट 1905 to 1907-08. क्लियर? सो हियर द मास मूवमेंट. ठीक है, मास मूवमेंट का आइडिया तो गांधी का भी था. गांधी ऑल्सो लॉन्च मास मूवमेंट. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गांधीयन मास मूवमेंट एंड दिस मास मूवमेंट? सो दिस मास मूवमेंट वाज नॉट कंट्रोल्ड इन नेचर. मेरी बात समझ गया ना? मास मूवमेंट को जो लोग लीड कर रहे थे उनके बीच में ही स्प्लिट हो गया आगे चल के. प्रॉब्लम आई ना? राइट? दिस मास मूवमेंट वाज नॉट कंट्रोल्ड मास मूवमेंट. राइट? दिस मास मूवमेंट वाज नॉट कंट्रोल्ड. ये कंट्रोल्ड नहीं था. नॉट प्रॉपरली कंट्रोल्ड. ठीक है, दिस मास मूवमेंट वाज नॉट प्रॉपरली कंट्रोल्ड. ठीक है, ये मास मूवमेंट प्रॉपरली कंट्रोल्ड मास मूवमेंट नहीं था. दूसरी चीज, क्लियर? मास मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट 1905 टू 1908. 078 में स्वदेशी मूवमेंट डिक्लाइन हो गया. बट आफ्टर दिस डिक्लाइन, व्हाट शुड बी द, ओके, दिस इज अ पीरियड ऑफ ट्रूथ ना. मूवमेंट डिक्लाइन होने के बाद आगे का रास्ता क्या होगा ये बहुत कुछ तय नहीं था.
कुछ लोगों ने, यूथ ने क्या शुरू कर दिया, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज। ठीक है, मतलब लोगों की एनर्जी अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो गई, डाइवर्ट हो गई। मेरी बात समझ गया ना? इट मींस दैट वंस दिस मास मूवमेंट एंडेड, ओके, तो हियर इन कॉम्प्रोमाइज स्टेट व्हाट हैपेंड, यू ऑल नो, पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक। कैरेट से क्या किया, मॉडरेट्स को अपीस कर लिया, स्टिक से इनका ब्रूटल सप्रेशन कर दिया, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या शुरू हो गया, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज। इसका मतलब ये है, राइट दिस, ओके, आफ्टर द ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ द मूवमेंट, after the gradual decline of movement, what will be the future course of strategy? It was not clearly, after decline of Swadeshi movement, what will be the future course of strategy? It was not clearly defined. It was not clearly defined. It was not clearly defined. फ्यूचर कोर्स ऑफ स्ट्रेटजी क्या होगा, ये क्लियरली डिफाइन नहीं था। मानते हो ना? अच्छा, इन स्वदेशी मूवमेंट passive resistance as a technique was used or not? What is the answer? Yes, but official acceptance of INC was not there. Swadeshi movement में Swadeshi and boycott techniques were used or not? Used. But this should be used outside Bengal or not? इस बात को लेके क्या हो गया, डेडलॉक क्रिएट हो गया। इसका मतलब ये जितनी स्ट्रेटजीज आप देख रहे हो, चरखा, yes, चरखा was there. Each and everything will be used by Gandhi in non-cooperation movement, but the non-cooperation movement or the Gandhian movement is a controlled mass movement. वो controlled mass movement। मेरी बात समझ गया ना? थोड़ा सा ये डिफरेंस है। सो हियर व्हाट वी सी कि स्वदेशी मूवमेंट में व्हाट वाज यूज्ड, यहाँ पे यूज किया गया चरखा, राइट, स्वदेशी, बायकॉट, पैसिव रेसिस्टेंस, ईच एंड एवरी टेक्निक वाज यूज्ड। क्लियर? स्वदेशी, चरखा, बायकॉट, पैसिव रेसिस्टेंस, ईच एंड एवरी टेक्निक वाज यूज्ड, सब कुछ यूज किया गया। बट वाई गांधी इज सिग्निफिकेंट एंड गांधीयन मूवमेंट आर सिग्निफिकेंट? ये बात हमें समझना है ना, कि यही चीज तो गांधी भी यूज कर रहा है, बट वाई गांधी इज सिग्निफिकेंट एंड गांधीयन मूवमेंट इज सिग्निफिकेंट? सो राइट दिस पार्ट, सेकंड पार्ट, राइट, ओके। गांधी also गांधी also used similar techniques or similar strategies. Gandhi also used similar techniques or similar strategies, but why Gandhian movement are so significant? Why Gandhian movement are so significant? Gandhian movement इतने significant क्यों हैं? Why Gandhian movement are so significant? Right? This we need to understand. Gandhi also used, but why Gandhian movement are so significant? So right, point one. Point one. The mass movements are controlled mass movement. पहली चीज, they are what? Controlled mass movement. Controlled mass movement. Why we are calling controlled mass movement? क्योंकि लोगों को क्या बताया गया, सत्याग्रह टेक्निक्स, हाउ टू बी अ ट्रू सत्याग्रही, इसकी ट्रेनिंग दी गई। सत्याग्रही कैसे बन सकते हैं? Here the method of non violence will be used. This non violence will not be compromised at any cost. नॉन वायलेंस के साथ किसी भी कीमत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। चौरी चौरा वायलेंस होता है तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या किया जाता है, रोक दिया जाता है। गॉट इट? तो नॉन वायलेंस विल नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड एट एनी कॉस्ट। ठीक है, दूसरी बात क्या है, यहां पे लिख लेना कि एग्जांपल, नॉन वायलेंस विल नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड एट एनी कॉस्ट, राइट? एग्जांपल, विथ चौरी चौरा इंसिडेंट NCM was suspended. With Chauri Chaura incident or due to Chauri Chaura incident, non-cooperation movement was suspended. Non-cooperation movement was suspended. इसका मतलब क्या है कि नो कॉम्प्रोमाइज विथ व्हाट, नॉन वायलेंस, इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। दूसरी चीज, ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये बड़ा क्लियरली डिफाइंड था कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज की जाएंगी। It got official support of Indian National Congress and it was not confined only to one particular region. It was applied on all India. All India से related था. And it was successful in getting the support of all classes. Even Muslims came and supported non-cooperation movement. ठीक है ना? तो write this mass appeal of this movement. Mass appeal of this movement. गांधी के मूवमेंट क्या करते थे, मास अपील करते थे।
That is the most important thing. Mass appeal on these movements. Clearly defined methods and strategies. Here, what we see that clearly defined methods and strategies. Clearly defined methods and strategies. Gandhian movement में there are clearly defined methods and strategies. For example, गांधी ने दो चीजें बात करी clearly defined में. जैसे कहा कि suppose movement is in progress. अगर movement चल रहा है, suppose movement is in progress. Let's take example of non-cooperation movement. ये movement progress में है. 1922 1922 मूवमेंट चल रहा है. तो इस मूवमेंट में टू पैरेलल स्ट्रेटजीज होंगी. गांधी ने इसको क्लियर कर दिया था कि देयर विल बी टू पैरेलल स्ट्रेटजीज इन दिस मूवमेंट. ठीक है. वो पैरेलल स्ट्रेटजी क्या है? पहला क्या है? राइट, एक्टिव. ठीक है. और यू कैन से दैट इसको लोगों ने डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स भी कहा, बट इसको डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स कहना ज्यादा अच्छा नहीं है. डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स. डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स क्या है? फॉर एग्जांपल यूज ऑफ बायकॉट. बायकॉट करना है. किस चीज का बायकॉट करना है? गुड्स का करना है, फॉरेन गुड्स का. प्लस पैसिव रेसिस्टेंस, ये भी इसमें एक हिस्सा था. पैसिव रेसिस्टेंस इट मींस बायकॉटिंग लॉ कोर्ट्स, बायकॉटिंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस. वल्लभ भाई पटेल इसी समय अपनी वकालत छोड़ के गांधीयन मूवमेंट से जुड़ गए. उन्होंने क्या किया? बायकॉट किया. किस चीज को? लॉ कोर्ट को. वाई लॉ कोर्ट वाज बायकॉटेड? बिकॉज इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय. लॉ कोर्ट को किसने सेटअप किया था? ब्रिटिश ने. ठीक है. जैसे वो कल वाली कहानी मैंने बताई थी कि दुर्योधन के पास इतनी बड़ी सेना थी, चतुरंगिनी सेना, बट वो सेना सरवाइव क्यों कर पा रही थी? पांडवों से क्यों लड़ पा रही थी? क्योंकि उसमें कुछ अच्छे लोग थे. तो अगर उन अच्छे लोगों के सपोर्ट को हटा दिया जाए तो वो सेना हार जाएगी. दैट आर्मी विल बी डिफीटेड. इन द सेम वे ब्रिटिश Raj in India was an evil structure, and that evil structure, okay, was continuing or was surviving due to the support of Indians. So, if Indians will use which technique? Passive resistance technique. They will take back their support. What will happen? This evil structure will collapse. गांधी ने देखो कितने तरीके से अपनी बात समझाई. मतलब अपनी बात को किससे जोड़ा? रिलीजन से जोड़ा. ध्यान से समझना मेरी बात को. और जब आप अपनी अपनी बात को रिलीजन से जोड़ के बताते हो तो उसका अपील क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है. दैट इज द रिलीजियसिटी ऑफ गांधी. यानी गांधी वॉज अ स्मार्ट पर्सन who was able to relate the contemporary issues with the matters of religion. कितने चालाकी से उन्होंने कहा राम राज्य, और आम आदमी जुड़ गया राम राज्य के कॉन्सेप्ट से. हालांकि उनका राम राज्य का मतलब हिंदू नेशन बिल्कुल नहीं था. गॉट इट. सो गांधी ने क्या किया? क्लियर कर दिया कि पैसिव रेसिस्टेंस एज अ टेक्निक विल बी यूज्ड. और ये ऑल इंडिया मूवमेंट था. इट वाज ऑल इंडिया मूवमेंट. गांधी गॉट सपोर्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. ठीक है. पीजेंट्स, वर्कर्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, स्टूडेंट्स, women all came and supported non-cooperation movement. So that is why this is called great mass movement. इसी को हम क्या कहते हैं? ग्रेट मास मूवमेंट. तो बताओ गांधी ने इंडियन मूवमेंट्स को एक नया डायरेक्शन दिया कि नहीं? दिशा दी कि नहीं? उसको डिफाइन किया कि नहीं? यस, ही डिफाइंड इंडियन नेशनल मूवमेंट. एंड व्हाट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर? लुक हियर. Two parallel strategies. The second parallel strategy is constructive works of Gandhi. इन्होंने कहा ये भी करना है हमें, constructive works of Gandhi. And what is that constructive works of Gandhi? Gandhi said कि promotion of Hindu Muslim unity, इसको बढ़ाने के लिए काम करना है. ओके. एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी, जब हम अनटचेबिलिटी को खत्म करेंगे तो क्या होगा? हिंदूज के बीच यूनिटी बढ़ेगी, सोशल यूनिटी बढ़ेगी. दिस सोशल यूनिटी विल इंप्रूव. सो प्रमोशन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड दिस यू कैन से फाइटिंग विद अनटचेबिलिटी. इसके अलावा क्या है? राइट. प्रोमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज, promoting local enterprises or businesses, opening schools and colleges where nationalist education will be given. ये सारा का सारा कंस्ट्रक्टिव वर्क था. That was the constructive works of Gandhi. ठीक है. And what Gandhi said that suppose the movement stops here. अगर मूवमेंट स्टॉप हुआ जैसे 1922 में हुआ तो गांधी विल से दैट वन प्रोग्राम विल नेवर बी डिसकंटिन्यूड. और वो प्रोग्राम क्या है? कंस्ट्रक्टिव वर्क. It means movement is in progress or not, one program will always
be continued. That is what? Program of constructive work. क्योंकि इस constructive work से हमें क्या मिलेगा? This constructive work will give us economic swaraj, social swaraj, and this program will be helpful in giving us political swaraj. ठीक है ना? इससे हमें क्या मिलेगा? इकोनॉमिक स्वराज, सोशल स्वराज, और साथ ही साथ इससे हमें क्या मिलेगा? पॉलिटिकल स्वराज. तो अगर मूवमेंट स्टॉप भी हो जाता है तो हमें किस चीज के लिए फाइट करना है? इकोनॉमिक स्वराज के लिए और सोशल स्वराज के लिए. गॉट इट? ओके. एंड गांधी हैज एम्फेसिस ऑन रिलीजियसिटी आल्सो. एम्फेसिस ऑन रिलीजियसिटी, जैसा अभी मैंने एक एग्जांपल भी बताया था, एम्फेसिस ऑफ रिलीजियसिटी. एंड ड्यू टू दिस, ओके, there is a mass appeal of Gandhi. Mass appeal of Gandhi. Mass appeal of Gandhi. Mass appeal के लिए गांधी ने क्या किया? गांधी identified his personality with the personality of common man. ठीक है ना? गांधी ने क्या किया? गांधी did what? He identified his personality with the personality of common man. और यही आइडिया अरविंद केजरीवाल ने ले लिया. ठीक है? और दिल्ली के सीएम बन गए. ठीक है? आम आदमी जैसा कपड़ा पहनता है वैसा पहनना शुरू कर दो. गांधी ने किया, धोती पहनना शुरू कर दिया. ही स्टार्टेड ट्रैवलिंग इन थर्ड क्लास रेलवे कंपार्टमेंट. हमेशा थर्ड क्लास में क्या करते थे? ट्रैवल करते थे. इंग्लिश बोलना छोड़ के कौन सी भाषा बोलने लगे? वर्नाक्यूलर्स, लोकल लैंग्वेजेस, हिंदुस्तानी. एंड इन दिस वे नाउ ही वाज बेटर कनेक्टेड विद द कॉमन मासेस, और आम आदमी उनको अपना नेता समझने लगा. दिस इज कॉल्ड सिंबलिज्म इन पॉलिटिक्स. कितना तरीके से यूज किया सिंबलिज्म इन पॉलिटिक्स. आप गांव में चले जाओ और गांव में जाके इंग्लिश बोलो, लोग तुमसे पहले 2 कदम दूर खड़े होंगे, फिर 4 कदम दूर खड़े होंगे, फिर मिलने ही नहीं आएंगे. ठीक है? So if you speak in the languages, common languages, interact with the people looking like them, so obviously the people will be more comfortable with you. So symbolism in Gandhian politics, okay, helped Gandhi in identifying himself with the identity of common man. ये भी गांधी ने किया. And Gandhi was a practical idealist. Gandhi was a practical idealist. वो practical idealist भी थे. Why Gandhian movements were non-violent in nature? नॉन वायलेंस पे इतना ज्यादा एम्फेसिस क्यों था गांधी का? बताओ. गांधी का एम्फेसिस इतना ज्यादा नॉन वायलेंस पे इसलिए था बिकॉज गांधीज आइडियाज वेयर, ओके, यू कैन से गांधीज स्ट्रेटजीज, ओके, वेयर ऑलवेज टेकिंग इनटू कंसिडरेशंस इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिनेरियो. वो हमेशा किस चीज को ध्यान में चलते थे? लेके इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिनेरियो. ठीक है ना? जैसे मान लो कि ब्रिटिश रूल वाज देयर इन अदर कॉलोनीज आल्सो. सो इन अदर कॉलोनीज वेयरएवर द पीपल रेसिस्टेड विथ वायलेंस, व्हाट ब्रिटिश डिड? दे किल्ड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल. ठीक है? एंड दे फोर्सफुली सप्रेस देयर मूवमेंट. एंड गांधी वाज नोइंग दिस. एंड गांधी वाज नोइंग दिस दैट व्हेन इंडियंस विल डू द सेम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिसमें ब्रिटेन जीत गया. ध्यान से समझना इस बात को. Britain was victorious group. Britain victorious group में था ना in first world war also, second world war also. So if you will use force, what will happen? Ultimately, the British will got, okay, a pretext of forceful suppression of your movement. उनको बहाना मिल जाएगा आपके movement को forcefully suppress करने का. And that's why Gandhi said that no use of violence. Violence का use नहीं करना है. Even Bhagat Singh at one point of time he will say that we will have to follow the strategy of mass movement. You should go and unite the peasant, workers and students with you. And when we will do mass movement, British government will not able to suppress us. भगत सिंह ने कहा कि मैं तो अपनी कुर्बानी दे रहा हूं, लेकिन मेरे जैसे और लोग भी आएंगे, बट ब्रिटिश क्या करेंगे? सीधा सीधा आपके लीडर्स को उठा के क्या कर देंगे? एग्जीक्यूट कर देंगे. और वो एग्जीक्यूट करने के साथ ही वो जो मास मूवमेंट, जैसे देखो भगत सिंह के डेथ के साथ ही, उनके मार्टिडम के साथ ही क्या होता है? एक जो मूवमेंट का पूरा जो एक कह सकते हो कि जो एक मतलब एक बहुत पैरेलल मूवमेंट जो चल रहा था, वो अचानक से क्या होता है? डिक्लाइन होता है. तो भगत सिंह वाज आल्सो नोइंग दिस. ठीक है ना? सो गांधी डिड व्हाट? गांधी यूज्ड दीज टेक्निक्स. गॉट इट? एंड फाइनली वी वर एबल टू गेट सम पॉलिटिकल रिलैक्सेशंस. हमको पॉलिटिकल रिलैक्सेशंस मिले भी. देयर आर मेनी पैराडॉक्सेस आल्सो, ironies also.
There are many events in history, right, which also gives us the opportunity to judge the decisions that were taken by Gandhi. ठीक है कि उस डिसीजन की जगह कोई और डिसीजन होता तो कितना बेहतर होता. ठीक है, तो उस पे भी हम बात करेंगे when we will turn to the national movement. Now what is the बिपिन चंद्रा's outlook कि गांधी ने क्या किया, पहले से चले आ रहे मूवमेंट्स को क्या किया, कंट्रोल्ड मास मूवमेंट बनाया, उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन दिया, उनको ज्यादा एफिशिएंट बनाया. ठीक है, और वो उस समय के, ठीक है, तरीके को बेटर ढंग से जस्टिफाई करते थे. फॉर एग्जांपल राइट अ स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट इज राइट द स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1905, the Swadeshi movement of 1905 anticipated many of the tactics many of the tactics. The Swadeshi movement of 1905 anticipated many of the tactics that were later developed during the Gandhian mass movement. The Swadeshi movement of 1905 anticipated many of the tactics that were later developed during the Gandhian mass movement. That were later developed into the Gandhian mass movement. आप समझ पा रहे हो, ठीक है, कि बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स का यूज किया जो आगे चल के किसमें यूज होता है, गांधीयन मास मूवमेंट्स में. कैन यू रिलेट दीज थिंग्स, आप रिलेट कर पा रहे हो? So these are some statements, quotations. Now this is a new tradition that whenever UPSC asks any question, they will put some statements और उसके आगे लिख देंगे evaluate करो, critically examine करो. So if you understand the broader theme, you can easily write the answer of those questions. ठीक है, और हमारे पास word limit भी है, तो वो आंसर exactly वैसा नहीं होगा जैसा एक आप फ्री होकर एक आर्टिकल लिख रहे हो और उसमें बहुत सारे पॉइंट्स को इंक्लूड कर रहे हो, या बाद में किसी ने आपको आंसर फॉर्मेट बना के दे दिया, राइट, मॉडल आंसर बना के दे दिया, तो वैसा मत एक्सपेक्ट करो, वो पॉसिबल भी नहीं है. एग्जामिनेशन हॉल में आप अलग तरीके से परफॉर्म करोगे. ठीक है, हो सकता है टीचर को बिठा दिया जाए तो वो भी आपसे अच्छा आंसर नहीं लिख पाए. ठीक है, तो ये बहुत एक रियलिस्टिक चीज है कि नेवर गेट अंडर एस्टिमेटेड बाय लुकिंग एट द मॉडल आंसर्स दैट आर गिवन टू यू, because those model answers have been prepared by the teachers. ठीक है, यूजिंग इंटरनेट, डिफरेंट सोर्सेज. क्या बेहतर हो सकता है, उतना टाइम एक स्टूडेंट के पास नहीं होता है. ठीक है, तो आप जो प्रैक्टिकल कर सकते हो उसके बारे में सोचो. इसलिए हम ज्यादा घबरा जाते हैं किसी भी क्वेश्चन को देख के, और टीचर डरा देते हैं कि इसमें ये लिखना था, नहीं लिखा तो फिर हमारे पास आओ, ठीक है, तब लिख पाओगे. ठीक है, ऐसा नहीं है, आप बेसिक बातें लिख के चले आओगे, आपको मार्क्स मिलेंगे. Now we are entering into the next part that I said that we will discuss today, that is Gandhian movement. So एक नया topic note करो, that is Gandhian movement. Now when we will discuss this Gandhian movements, obviously, okay, the previous discussions will help us. Gandhian movements. So in Gandhian movements, first I am starting with this part, that Gandhi returned from South Africa to India. जैसे साउथ अफ्रीका में तो वो लंबे टाइम तक रह गए, from 1893 to 1915, and he returned to India in 1915. Right, this Gandhi finally returned to India. बीच में आते जाते रहते थे. Finally returned to India in 1915. Clear? And when he was in South Africa, when Gandhi was in South Africa, देखो, in India, the most important political party was Indian National Congress. सबसे लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी, एंड इट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी. एंड गोपाल कृष्ण गोखले वाज अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है, ही वाज अ मॉडरेट लीडर, so he was a prominent leader of this political party. He was also an economic critic, वो economic critic भी थे. And we all know that Gokhale was also the political guru of Gandhi. Gokhale was also the political guru of Gandhi. So Gokhale was in constant touch with Gandhi. Gokhale was in touch with Gandhi. So whatever the activities that were done by Gandhi, whatever the strategies that were being followed by Gandhi in South Africa against the colonial government, Gokhale was well aware of this.
एंड वेन एवर गोखले सेट विथ हिज कलीग्स, ठीक है, ही यूज टू डिस्कस अबाउट गांधी। इंडिया में जब भी वो कांग्रेस के ऑफिस ऑफिस में बैठते थे तो वो गांधी के बारे में बात करते थे कि मतलब एक बच्चा है जिसका नाम है गांधी, साउथ अफ्रीका में बहुत शानदार काम कर रहा है। तो पीपल वेर फेमिलियर विद दिस नेम गांधी, कि कोई गांधी है, ठीक है, साउथ अफ्रीका में रह के कुछ काम कर रहा है और शानदार काम कर रहा है। गॉट इट? सो पीपल वेर फेमिलियर विद द नेम, but they were not familiar with that personality. And whenever Gandhi came to India, and if there is an important session at that time, so he attended that session. जैसे when Gandhi came to India, clear, in 1915 he returned to India, और 1916 में एक बहुत ही important session हुआ. And what is the name of this Congress session? You all know this. This is Lucknow session. और यहीं पे क्या हुआ था? Lucknow Pact. Did Gandhi play an important role in this Lucknow Pact? The answer is no. कोई इंपॉर्टेंट रोल गांधी का नहीं है लखनऊ पैक्ट में, ठीक है। बैक बेंचर, बैठ के फर्स्ट ऑब्जॉर्व देन रिएक्ट, ही वाज ऑब्जॉर्विंग एवरीवन। बैक बेंच पे बैठने का ही फायदा होता है, यू कैन ऑब्जॉर्व द एंटायर क्लास। फर्स्ट बेंच वाले केवल टीचर को ऑब्जॉर्व करते हैं, राइट? तो गांधी वाज बैक बेंचर, सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच ऑब्जॉर्विंग एवरीथिंग व्हाट इज गोइंग ऑन, ओके। एंड moderates, extremists were there, but he did not intervene, उसमें इन्होंने इंटरवीन नहीं किया। And at that point, Rajendra Prasad will come and meet Gandhi. Rajendra Prasad गांधी के पास आएंगे and they will say that we have heard a lot about you, so will you help us? क्या आप हमें हेल्प करेंगे? गांधी ने कहा कैसी हेल्प चाहिए आपको? तो राजेंद्र प्रसाद ने कहा देयर इज अ पीजेंट इशू in Champaran. So I think that if you will intervene, the problem will get solved. And Gandhi denied to intervene. Gandhi ने कहा नहीं नहीं, अभी first I am observing the political situations, okay? So right now I am not ready to intervene. अभी मैं intervene नहीं करूँगा, मना कर दिया 1916 में। होम रूल लीग चला, याद है आपको? And Gandhi did not join home rule league. He said that I will first observe then react. ठीक है ना? और माहौल इनका किसने बनाया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और गोपाल कृष्ण गोखले का एक ऑर्गेनाइजेशन था, द नेम वाज, क्या था बताओ? राइट इन चैट बॉक्स, बताया था आपको सोशलिस्ट रिफॉर्म्स में। गोपाल कृष्ण गोखले, गोखले फॉर्म्ड, हिंट दे रहा हूं, सोसाइटी। व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस सोसाइटी? गुड, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। मान लो कभी ये क्वेश्चन पूछ ले कि डिड गांधी ज्वाइन सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो देखो अगर हम बेसिक गेस लगाएंगे तो हमें लगेगा हाँ हाँ पॉलिटिकल गुरु गोखले थे तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ज्वाइन किया होगा, बट ऐसा नहीं था, ठीक है। कुछ लोगों ने अपोज किया, गांधी डिड नॉट ज्वाइन सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सो राइट दिस पॉइंट, गांधी डिड नॉट ज्वाइन सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ओके, विच वाज सेट अप बाय गोखले। ये याद रखना हमेशा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के मेंबर गांधी नहीं थे, होम रूल लीग नहीं ज्वाइन किया था। गॉट इट? 1916 लखनऊ सेशन में इनका कोई भी इंपॉर्टेंट रोल, सिग्निफिकेंट रोल नहीं था। क्लियर? There was no any significant role of Gandhi in Lucknow session 1916. लखनऊ सेशन में कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं। इतनी बात आपको समझ में आ गई? एंड व्हेन गांधी केम टू इंडिया, और अगर वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में जा रहे हैं, इट मींस कुछ तो पॉलिटिकल एम्बिशंस है कि नहीं? बताओ, फर्जी में कोई पार्टी कार्यालय में क्यों जाके बैठेगा? ठीक है, जाके आप बैठते हो क्या पार्टी कार्यालय में? बीजेपी या कांग्रेस नहीं जाते, लेकिन अगर जाने लगे इसका मतलब यू हैव सम पॉलिटिकल एम्बिशंस। तो गांधी के तो पॉलिटिकल एम्बिशंस थे, और गुरु भी बड़ा चुन के रखा था इन्होंने, गोखले। और गोखले के गुरु कौन थे? एम जी रानडे। ही वॉज अर्ली नेशनलिस्ट। तो देखो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट है कि लिंक, पॉलिटिक्स में भी जाना है तो आपको एक प्रॉपर लिंक होना चाहिए। अगर आपकी दोस्ती ही हो जाए नितिन गडकरी जी के साथ तो कहाँ पहुंच जाओगे? मेरी बात समझ गए ना? ठीक है, तो गांधी की दोस्ती किससे थी? गोखले से, ठीक है। और गोखले वॉज क्रिएटिंग ओपिनियन इन फेवर एंड सपोर्ट ऑफ गांधी। गांधी के लिए लोगों का सपोर्ट इकट्ठा कर रहे थे। एंड बिफोर व्हेन गांधी केम टू इंडिया, he was just trying his hands in the national politics. Before this, he was a leader of international reputation. गांधी नेशनल लीडर बनने से पहले ही कैसे लीडर थे? इंटरनेशनल लीडर थे। और बताओ इससे जेलसी होगी कि नहीं कुछ लीडर्स में?
जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के होंगे, ऑब्वियस, स्वाभाविक है, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल जेलसी। मेरी बात समझ गया ना, प्रोफेशनल जेलसी इसी को कहते हैं। सो व्हेन गांधी केम टू इंडिया, ज्वाइंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, ओके, सो ही वाज ऑलरेडी एन इंटरनेशनल लीडर, ही वाज ऑलरेडी एन इंटरनेशनल लीडर, पहले से ये इंटरनेशनल लीडर थे। एंड ही फॉलोड द एडवाइस ऑफ गोखले। गोखले का एडवाइस क्या था? ठीक है, कि सीधा जंप नहीं करना है, क्या करना है? फर्स्ट ऑब्जॉर्व देन रिएक्ट, ठीक है ना? सो दिस वाज गोखलेज एडवाइस, दिस वाज गोखलेज एडवाइस टू गांधी, दैट फर्स्ट ऑब्जॉर्व देन रिएक्ट, ठीक है। एंड गांधी वाज ऑब्जर्विंग द पॉलिटिकल सीन, गांधी उस पॉलिटिकल सीन को क्या कर रहे थे? ऑब्जर्व कर रहे थे, ही वाज ऑब्जर्विंग दैट पॉलिटिकल सीन। अब इसी सीक्वेंस में गांधी गॉट सम अपॉर्चुनिटी, एंड व्हाट इज दैट अपॉर्चुनिटी? तो देखो, read this, regional experiments of Gandhi, regional experiments of Gandhi. So there are three important regional experiments of Gandhi, and they are, right, Champaran Satyagraha, second is Ahmedabad mill strike, Ahmedabad mill strike issue, and the third is Kheda Satyagraha, Kheda Satyagraha, खेड़ा सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण इज इन बिहार, ये आपको पता है। अहमदाबाद इज इन गुजरात, खेड़ा इज इन गुजरात। चंपारण सत्याग्रह ईयर इज 1917 एंड द ईयर ऑफ अहमदाबाद मिल स्ट्राइक इज 1918। खेड़ा सत्याग्रह का भी ईयर क्या है? 1918। मंथ्स आर डिफरेंट, तो मंथ तो हमें याद रहेगा नहीं, याद रहेगा नहीं रहेगा, तो लिखना ही क्यों कॉपी में? विल नॉट राइट द मंथ्स if you are not able to remember. Now, national, read this, national issues that were addressed by Gandhi. National issues that were addressed by Gandhi. So, first national issue, पहला जो नेशनल इशू था जिसको गांधी ने एड्रेस किया, that was Rowlatt सत्याग्रह, that was Rowlatt सत्याग्रह 1920, Rowlatt सत्याग्रह। फर्स्ट नेशनल इशू एड्रेस्ड बाय गांधी वाज राउलेट सत्याग्रह, राउलेट सत्याग्रह, ठीक है। 1919 ही लिखोगे तो ज्यादा बेटर होगा, 1919 राउलेट सत्याग्रह, ठीक है। एंड देन द सेकेंड नेशनल इशू दैट वाज एड्रेस्ड बाय गांधी वाज खिलाफत मूवमेंट, दिस वाज खिलाफत मूवमेंट। अगेन दिस इज 1920 खिलाफत मूवमेंट, इसका ईयर क्या हो गया? 1920। दीज आर टू इंपॉर्टेंट इश्यूज, ठीक है, खिलाफत इशू। अच्छा देखो, यहाँ पे गांधी इज लीडिंग राउलेट सत्याग्रह, डिड ही गेट ऑफिशियल सपोर्ट एंड हेल्प ऑफ आईएनसी? आंसर इज नो। गांधी बिकेम खिलाफत कमिटी चेयरमैन, खिलाफत मूवमेंट, डिड आईएनसी ऑफिशियली सपोर्टेड? द आंसर इज नो। तो इन दोनों जगहों पे रेड दिस, नो ऑफिशियल सपोर्ट ऑफ आईएनसी, यहाँ पे आईएनसी का सपोर्ट नहीं है, नो ऑफिशियल सपोर्ट ऑफ आईएनसी। क्या यहाँ पे आईएनसी सपोर्ट कर रही है? क्या यहाँ पे आईएनसी का सपोर्ट मिला? नहीं, ये गांधी का खुद का हैंडल किया है वो इशू, रीजनल इशू है, तो देयर इज नो एनी रोल ऑफ आईएनसी हियर, ओके। दीज आर रीजनल एक्सपेरिमेंट्स, दिस इज नेशनल इशू, राउलेट सत्याग्रह एंड खिलाफत मूवमेंट, ठीक है ना। नाउ इसके बाद क्या होता है? इसके बाद नेशनल मूवमेंट्स दैट गांधी लेड, तो वन इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, 1920-22, एंड हियर फर्स्ट टाइम दिस मूवमेंट गॉट व्हाट? ऑफिशियल सपोर्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से होने वाला मूवमेंट है, और इस मूवमेंट के लीडर कौन है? गांधी, सबसे इंपॉर्टेंट लीडर। अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी दिस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस, ओके। तो दिस इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इन द सेम वे, द सेकेंड इंपॉर्टेंट मूवमेंट, गांधीयन मूवमेंट, विल बी CDM, civil disobedience movement, and this is the time period 1930, 1932-34, that is civil disobedience movement, Gandhian movement। फिर इसके बाद इंडिविजुअल सत्याग्रह भी आएगा, आई विल डिस्कस लेटर, इंडिविजुअल सत्याग्रह, देन क्विट इंडिया मूवमेंट भी आएगा, राइट।
that is 1942-44. Whereas Quit India movement was self spontaneous in nature. When I will discuss the topic, I will discuss the meaning of self spontaneous nature of the movement. Clear? Now, before we enter into the topic, okay, in prelims you will get PYQ, okay, and the PYQ will be based on arranging the different events in a chronological order. कि पहले कौन हुआ था, बाद में कौन हुआ था, okay? तो previously they have asked a question and the code was, ये कोड लिख लो, इससे आप इजीली चीजों को एलिमिनेट कर सकते हो. कोड इज CAKRA, काकरा. ठीक है, याद रहेगा अब. C मीन्स व्हाट, चंपारण. A मीन्स व्हाट, अहमदाबाद, मिल स्ट्राइक. K मीन्स व्हाट, खेड़ा. देन R मीन्स व्हाट, राउलेट एक्ट. और A simply means असहयोग आंदोलन. असहयोग मीन्स नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. असहयोग मीन्स नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. गॉट इट? तो ये ट्रिक याद रहेगा. चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, राउलेट एक्ट, राउलेट सत्याग्रह एंड असहयोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. प्लस एक और ट्रिक बताऊं जिससे आपको याद नहीं करना पड़ेगा डेट. देखो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट दोनों में क्या रिलेशन है. तो खिलाफत मूवमेंट पहले हुआ, ठीक है, 1919-20. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920-22. और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट डिड व्हाट, इट यूटिलाइज्ड द प्लेटफॉर्म ऑफ खिलाफत मूवमेंट, ट्रांसफॉर्म दिस मूवमेंट इनटू ऑल इंडिया एंड ऑल क्लास मूवमेंट, दैट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. तो अब याद रहेगा ना कि पहले क्या होगा, खिलाफत मूवमेंट, बाद में क्या होगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. तो यू कैन राइट हियर दैट NCM utilized the platform of Khilafat movement and transformed it into all class और नेशनल मूवमेंट, ऑल क्लास मूवमेंट ने इसको बदल दिया. व्हेन आई विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट यू विल लर्न दिस. इसको बदल दिया. नाउ we are going to discuss the first issue here, first regional issue, that is Champaran Satyagraha. So read the first topic. First topic is Champaran Satyagraha. Champaran Satyagraha. What was the issue in this Champaran Satyagraha? This we need to understand. Year क्या हो गया, 1917, और ये काकरा में से पहला है. This is the first we are going to discuss, Champaran Satyagraha. Okay. तो मैंने पहले ही बताया था, I have told you earlier that in 1916 Lucknow session, some peasant leaders came and they met with Gandhi and they requested Gandhi to intervene into a peasant's cause in Champaran. But here Gandhi denied. लेकिन यहाँ पे गांधी ने क्या किया, मना कर दिया था 1916. Got it? गांधी said that I will observe. पहले मैं आपके मुद्दे को समझूंगा and then I will say that मुझे intervene करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. Then Gandhi went back. He studied the Champaran issue. चंपारण इशू को पूरी तरह से स्टडी किया और उसके बाद इन्होंने किसको कॉल किया, राजेंद्र प्रसाद को, who became the first president of India. राजकुमार शुक्ला was an important leader, peasant leader. उनको कॉल किया, I am ready to come and address your concern. मैं चंपारण आने के लिए तैयार हूँ. चंपारण इज इन बिहार, ठीक है, मैं चंपारण आने के लिए तैयार हूँ. तो इन लोगों ने क्या कहा, पीजेंट लीडर्स ने, गांधी बाबा हमने पूरा माहौल तैयार किया, थाउजेंड्स ऑफ पीपल विल कम इन द रैली. पूछ के देखो किसी लीडर से, आओ भाई मेरी शादी में, पूछेगा कितनी भीड़ होगी तुम्हारी शादी में, 50,000 लोग आ रहे हैं तब मैं जरूर आऊंगा. और अगर तुमने कहा 500 पीपल आर कमिंग, लीडर विल नॉट कम. ठीक है, दे विल गेट अ चांस टू इंटरेक्ट विथ मोर एंड मोर पीपल. ठीक है, मतलब एक नॉर्मल टेंडेंसी बता रहा हूँ. सो गांधी विल कम टू इंटरवीन टू द कॉज ऑफ द पीजेंट्स इन चंपारण एंड नाउ द प्लेटफॉर्म इज रेडी. प्लेटफॉर्म तैयार है. और वो प्लेटफॉर्म क्या, गांधी बाबा पता ही है फोटोग्राफर लेके चलते हैं, तो हजारों लोगों की भीड़ चाहिए. पीजेंट लीडर ने कहा हजारों लोगों की भीड़ है. गांधी सेड दैट मैं आऊंगा, ठीक है, जरूर आऊंगा चंपारण. और चंपारण में इशू क्या था, दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड. सो इन चंपारण व्हाट वाज द मेन इशू, मेन इशू क्या था, व्हाट वाज द मेन इशू. सो मेन इशू वाज पीजेंट कंसर्न. यहाँ पे मेन इशू क्या है, द मेन इशू इज पीजेंट कंसर्न. राइट दिस, पीजेंट कंसर्न वाज द मेन इशू. दिस इज द मेन इशू.
और पीजेंट कंसर्न में भी दिस इशू was related to a particular class of peasant and that is what indigo peasant. ये मामला किससे जुड़ा हुआ था? This issue was related to a particular class of peasants that is indigo peasants. ठीक है, मैंने एक वीडियो डाला था हिंदी मीडियम का, देखा आप लोगों ने? थोड़ा सा देखा, कुछ देखा कि नहीं देखा यूट्यूब पे? ठीक है, ओके, आप समझ नहीं पाओगे ना हिंदी को, ठीक है। आई आई पोस्ट अ सिंगल वीडियो, ठीक है, एंड आई गॉट मोर देन 100 कॉल्स फॉर द क्लास। हिंदी मीडियम का रिस्पॉन्स इतना शानदार है एंड आई वाज सरप्राइज्ड आई गॉट 400 सब्सक्राइबर्स बाय अ सिंगल वीडियो। ठीक है, तो हिंदी मीडियम क्राउड पुलिंग है, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा, राइट, ओके, मोर देन 100 कॉल्स आई गॉट, ठीक है। चलिए, सो दिस इज इंडिगो पीजेंट्स, पीजेंट कंसर्न, इंडिगो पीजेंट, ओके, चंपारण। अब यहाँ पे इंडिगो पीजेंट्स की प्रॉब्लम क्या थी? तो आपको मैंने पहले क्लास में बताया था, आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू, नीज एंड रैयती मॉडल, कुछ याद आया? नीज एंड रैयती, ठीक है, दोनों में से कौन सा पॉपुलर मॉडल था? आकाश, विच वाज द पॉपुलर मॉडल? नीज एंड रैयती, एग्जैक्टली। रैयती में क्या होता था कि जैसे पार्ट डिसाइड हो जाता था एंड ऑन दैट वन पार्ट, सिंगल पार्ट, द पीजेंट विल डू कल्टीवेशन। दिस वाज द रैयती मॉडल ना। जैसे मैंने आपको क्लास में ये बताया था कि रैयती मॉडल में फॉर एग्जांपल देयर आर 4 पार्ट्स, ठीक है ना। तो इंडिगो पीजेंट विल डू इंडिगो कल्टीवेशन ऑन वन पार्ट, एक पार्ट में इंडिगो कल्टीवेशन करेंगे, दूसरे पार्ट में जो फूड ग्रेन्स कल्टीवेशन है वो करेंगे, एंड हियर दे विल गेट एडवांस पेमेंट, दैट इज कॉल्ड ददनी, ठीक है, एंड दे विल डू इंडिगो कल्टीवेशन। ऐसा कुछ था मॉडल ना। तो बिहार में मॉडल यही था बट वहां पे थोड़ा सिस्टम अलग था चंपारण में। क्लियर, द मॉडल इज द सेम विथ अ लिटिल बिट चेंजेस। सो सेम रैयती मॉडल वाज अप्लाइड, read this, same rayati model was applied in Bihar, same rayati model was applied in Bihar with a little bit changes, same rayati model was applied in Bihar with a little bit changes, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ वो सेम रैयती मॉडल अप्लाई होता है। एंड व्हाट आर दीज लिटिल बिट चेंजेस? तो देखो वो चेंजेस क्या है। तो द सिस्टम वाज तीन कठिया हियर, इस सिस्टम का नाम क्या था? तीन कठिया सिस्टम, राइट दिस, तीन कठिया सिस्टम। तीन कठिया सिस्टम वाज अ सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन, दिस सिस्टम वाज यूज्ड वेयर इन इंडिगो कल्टीवेशन। पढ़ा भी होगा आपने, तीन कठिया सिस्टम, ये यूज होता था इंडिगो कल्टीवेशन, ठीक है ना। और इस तीन कठिया सिस्टम में क्या प्रॉब्लम चीजें थी? तीन कठिया, इफ you are from Bihar and UP, you can easily you have must have heard the word कट्ठा। कट्ठा कितने लोगों ने सुना है? एक कट्ठा जमीन, दो कट्ठा जमीन। आप लोगों में से कोई बिहार बिहार का होगा तो जानता होगा, बिहार में यूपी में ज्यादा पॉपुलर है, इस मतलब नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कट्ठा। तो देखो, अगर रीजनल, अगर हम एक रीजनल टर्म की बात करें तो दिस इज कट्ठा। कट्ठा इज अ यूनिट ऑफ लैंड, कट्ठा, बीघा, धुर, इस तरह से लोग बात करते हैं। मेरी बात समझ गया ना। तो एक कट्ठा में 20 धुर होता है, ये वहां के लोकल टर्मिनोलॉजी में होता है, यानी वन कट्ठा यूनिट ऑफ लैंड विल हैव 20 धुर, धुर इसको बोलते हैं। तो ये हो गया 20, इसके 20 पार्ट्स हमने कर दिए, स्मॉलेस्ट यूनिट इज धुर, ठीक है। एक कट्ठे में कितने पार्ट हो गए? 20 पार्ट्स हो गए, एंड आउट ऑफ दीज 20 पार्ट्स, ठीक है, 20 पार्ट्स, ठीक है, ऑन 3 पार्ट्स, अब इसमें से कितने को सेलेक्ट कर लो? 3 को, 3 पार्ट्स को, दिस इज पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। टोटल पार्ट कितना है? 20, यानी 3 आउट ऑफ 20। अगर आप पूरे लैंड को 20 पार्ट में डिवाइड कर दें तो 3 आउट ऑफ 20, 3 अपॉन 20th पार्ट में, 3 अपॉन 20th पार्ट में यू विल हैव टू डू इंडिगो कल्टीवेशन। आपको इंडिगो कल्टीवेशन करना है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड तीन कठिया। तीन मीन्स व्हाट? 3, एंड कट्ठा इज अ यूनिट ऑफ लैंड। मेरी बात समझ गए ना? दिस इज व्हाई दिस इज कॉल्ड तीन कठिया, 3 आउट ऑफ 20 पार्ट। इट मीन्स आपका जो भी लैंड है उसके थर्ड पार्ट में, तो सॉरी 3 अपॉन 20 पार्ट में यू विल डू इंडिगो कल्टीवेशन। ऐसा एक सिस्टम चला आ रहा था फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। दिस सिस्टम वाज इन प्रैक्टिस, द पीजेंट्स वर डूइंग इंडिगो कल्टीवेशन, बट सडनली व्हाट हैपेंड, 1917 is what? The period of
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यही टाइम पीरियड है ना, 1914, 1918, 1917 का ये इशू है, क्लियर। सो द पीजेंट्स आर नॉट हैप्पी विद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कुछ तो इफेक्ट होगा ही इंडिया पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, वॉर क्राइसिस कुछ होगा। बट इन द मीन टाइम व्हाट हैपेंस इज दैट सिंथेटिक डाइज, देखो इंडिगो क्या है, इंडिगो इज अ नेचुरल डाई, इंडिगो इज अ नेचुरल डाई and it is used for coloring cloths. Indigo is a natural dye which is used for coloring cloths. कपड़ों की रंगाई में इस्तेमाल किया जाता है। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन इन इट्स इनिशियल स्टेज वाज व्हाट, ओनली टेक्सटाइल रिवॉल्यूशन। यानी बताओ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटेन में कैसा था, टेक्सटाइल रिवॉल्यूशन था, गॉट इट। और टेक्सटाइल रिवॉल्यूशन में आपको टेक्सटाइल्स की कलरिंग के लिए कलर की तो जरूरत होगी ना, और इंडियन इंडिगो वाज वेरी रिच ब्लू इन कलर, ठीक है। तो कलर का यूज होता था, इंडियन इंडिगो का हाई डिमांड, देयर वाज हाई डिमांड ऑफ इंडियन इंडिगो इन यूरोप, गॉट इट। देयर वाज अ कलमकारी प्रिंट आल्सो, यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा था, और जब पूछा था तो क्लास 8 की एनसीईआरटी में था, उसके बाद सभी कोचिंग वालों ने अपने नोट्स में अपडेट कर दिया, ये करते यही है, एग्जाम में पूछे जाने के बाद पीडीएफ फाइल में जाके अपडेट कर देते हैं, हमारे नोट्स से आया। तो कलमकारी प्रिंट जब पूछा गया तो वो क्लास 8 की एनसीईआरटी में था। और कलमकारी प्रिंट क्या था, द ब्रिटिश वर यूजिंग दिस कलमकारी प्रिंट, इस प्रिंट में जो इंडिगो होता था, इंडिगो की कलरिंग को मतलब एक तरह से डिस्प्ले में रखा जाता था, मेरी बात समझ गया ना, जो इंडियन इंडिगो की क्वालिटी को दिखलाता था, इसको डिस्प्ले में आप रखते थे, ब्लॉक प्रिंटिंग टाइप की चीजें थी। तो इस इंडियन इंडिगो की हाई डिमांड थी। 1917 में व्हाट हैपेंड, सिंथेटिक डाइज और सिंथेटिक कलर्स वर डिस्कवर्ड इन जर्मनी। अच्छा देखो, जर्मनी में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वहां केमिकल्स और ये सब में सबसे पहले डेवलपमेंट इस फील्ड में हुआ, ठीक है ना। सो 1917 में क्या हुआ, रेड दिस, सिंथेटिक डाइज वेर डिस्कवर्ड इन जर्मनी, सिंथेटिक डाइज वेर डिस्कवर्ड इन जर्मनी, सिंथेटिक डाइज डिस्कवर्ड हो गए, इट मीन सिंथेटिक कलर्स। अच्छा सिंथेटिक कलर्स चीपर होंगे कि नहीं, यस, और उनका कलर और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, राइट। सो इससे क्या होगा, दिस विल हैम्पर द डिमांड ऑफ Indian indigo in European market. Very simple concept. That synthetic dyes were discovered, and as a result, right, this Indian indigo demand was hampered in European market. Indian indigo demand was hampered in European market. European market में Indian indigo की डिमांड प्रभावित हो गई, right? Indian indigo demand was hampered in the European market, ठीक है, due to these synthetic dyes. तो जब डिमांड ही नहीं रहेगी तो बिजनेसमैन क्या करेगा, बताओ, खरीदना बंद कर देगा। और ब्रिटिश बड़े स्मार्ट थे, दे वर बेसिकली ट्रेडर्स। अब मान लो कि पहले से मुझे ऑर्डर मिला है किसी चीज का, गॉट इट। तो इंडियन इंडिगो peasants in Champaran had done what, they have done indigo cultivation, okay, and they are expecting that the plantation owners, or you can say that the indigo traders will come and purchase this indigo from them. और जब आप कॉन्टिन्यूस कई साल से ट्रेड एंड कॉमर्स करते हो तो एक सिस्टम बन जाता है ना, ड्यूज। जैसे इफ एज अ स्मॉल ट्रेडर यू आर अ होलसेलर, अगर मैं आपके यहाँ से 10 साल से ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा भाई 5 लाख रुपए का सामान मुझे दे दो, मैं अगले महीने दे दूंगा, ऐसा चलता है कि नहीं, वो सिस्टम बन जाता है ना। द सेम सिस्टम वाज देयर इन चंपारण आल्सो, since European traders were trading with these indigo peasants, so there was dues also. The peasants have already given them indigo and they want their payment, but now they are not clearing the payments. अब वो पेमेंट क्लियर ही नहीं कर रहे थे, क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको अब आपसे इंडिगो चाहिए ही नहीं, उनको आपसे जरूरत ही नहीं है, और जब जरूरत ही नहीं है तो आपका पेमेंट क्या करेंगे, वो रोक लेंगे, ठीक है। ये हुआ, ये प्रॉब्लम थी इंडिगो पीजेंट्स की। तो प्रॉब्लम क्या क्या थी, पहला दैट इंडिगो वॉज कल्टिवेटेड and the European traders were not purchasing it. They have given pre-orders, they were not purchasing it. Order पहले से दिया, purchase नहीं करना। What was the second issue? Second issue क्या था? That they were not clearing the dues of the indigo peasants. Indigo peasants के dues को नहीं clear कर रहे थे, and that's why these indigo peasants were suffering loss. इससे Indian indigo peasants को क्या हो रहा था? They were suffering loss. And they asked Gandhi's help and support to intervene in this issue, ठीक है, कि गांधी आएंगे तो शायद उनका जो पेमेंट फंसा हुआ है वो मिल जाएगा, या जो
इंडिगो कल्टीवेट उन्होंने किया वो शायद निकल जाए, बिक जाए. And for this, many read this, important leaders read this. Uh, some leaders invited Gandhi, and the name of these leaders is also very much important. Some leaders invited Gandhi. Now, who are these leaders who invited Gandhi? This is also a very important question for films. So, one most important name is, ये सभी leaders हैं बिहार से. One most important name is राजकुमार शुक्ला. राजकुमार शुक्ला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, राजकुमार शुक्ला. Second important name is Rajendra Prasad, who became the first president of India. Rajendra Prasad. One is Rajkumar Shukla. Second important name is Rajendra Prasad. Third important name is Mahadev Desai. Mahadev Desai. ये सभी नेम आपको याद रखना है. Fourth important name is Brij Kishore. Brij Kishore. Brij Kishore. Mahadev Desai. Brij Kishore. Narhari Parekh. Narhari Parekh. Narhari Parekh. ठीक है. जेबी कृपलानी. दे ऑल केम इन कांटेक्ट विद गांधी. ठीक है. जेबी कृपलानी. और जो भी गांधी के कांटेक्ट में अभी आ रहा है उसका पॉलिटिकल करियर बनने वाला है. गांधी का भी पॉलिटिकल करियर बनने वाला है और इन सभी लीडर्स का पॉलिटिकल करियर बनने वाला है. मजहर उल हक इज अ मुस्लिम लीडर हु विल आल्सो कम इन कांटेक्ट विद गांधी. मजहर उल हक. ठीक है. ये भी गांधी के कांटेक्ट में आ रहा है. गॉट इट. These are important leaders who invited Gandhi. Gandhi will come, will intervene. और जैसे ही गांधी के आने की खबर चंपारण में फैलती है तो वहां का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, he asked the people who is coming. The people said Gandhi is coming. He asked which Gandhi? What is the complete name? Mohandas Karamchand Gandhi. Is it the same person who was in South Africa? Is he coming? They said yes, he is coming. नाउ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करेगा? वो जानता था गांधीयन स्ट्रेटेजिस्ट को. साउथ अफ्रीका में गांधी ने अकेले ही हालत खराब कर दी थी सबकी. उसको पता था गांधी आ रहे हैं तो फोटोग्राफर साथ में होगा. पता ही है तुमको, भीड़ भी इकट्ठी होगी. ठीक है. और भीड़ को सप्रेस करने के लिए लाठी चार्ज अगर करेंगे तो बदनामी नेशनल लेवल पे नहीं होगी. कहाँ होगी? इंटरनेशनल लेवल पे लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि इज इट योर सिविलाइजिंग मिशन. तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सबसे पहले एक ऑर्डर इशू किया. और वो ऑर्डर क्या था? वो ऑर्डर ये था कि गांधी वॉज नॉट अलाउड टू कम टू चंपारण. गांधी वॉज नॉट अलाउड टू एड्रेस द पब्लिक मीटिंग. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना होता है ना, आज भी लेना होता है. ठीक है. कि भाई मैं एक पब्लिक मीटिंग करने जा रहा हूँ, 1000 लोग इकट्ठे हो रहे हैं. तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेड नो, गांधी इज नॉट अलाउड. गांधी तो पता ही है किसका आइडिया लेके चल रहे हैं, थॉरो का आइडिया लेके चल रहे हैं. गांधी विल से दैट व्हेन मोरल लॉ and state law will come in a state of conflict, I will go with my moral conscience. My moral conscience is saying that I will have to go to Champaran and I will come to Champaran. If you want to arrest me, I am ready to be arrested. I will consider jail as my second home. जेल मेरा दूसरा घर होगा. कर लो अरेस्ट. ठीक है. अच्छा, लोग सुन के खुश हो जाएंगे, उनको क्या पता गांधी बाबा किसी और का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं. हालांकि दूसरे के कॉन्सेप्ट को कंस्ट्रक्टिवली यूज कर लेना भी एक आर्ट है. ठीक है. गांधी चंपारण आते हैं, हजारों लोगों की भीड़ है. ठीक है. अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और ब्रिटिश अथॉरिटीज की हालत खराब. उनको पता था कि अगर ये मूवमेंट लंबा खिंचा, तो यही गांधी की स्ट्रेटेजी है कि अगर मूवमेंट लंबा खिंचा तो ये मुद्दा पूरे देश में फैल जाएगा और गांधी की पॉपुलैरिटी इंडिया में. तो व्हाट अथॉरिटीज विल डू? उन्होंने कहा इस मुद्दे को लंबा खींचने देना ही नहीं है. नहीं तो गांधी यहाँ पे क्या करेगा? मास मूवमेंट. दिस इज मास मूवमेंट. एंड व्हेन दिस विल बी अ प्रोलॉन्ग्ड मास मूवमेंट, दिस इशू विल बिकम पॉपुलर इन ऑल इंडिया एंड गांधी विल इमर्ज एज अ नेशनल लीडर. तो गांधी को नेशनल लीडर बनने नहीं देना है. तुरंत बनाई गई चंपारण एग्रेरियन कमिटी, एंड दैट चंपारण एग्रेरियन कमिटी सेड दैट तीन कठिया सिस्टम विल बी अबॉलिश्ड. all the dues of peasants will be cleared. ठीक है. Indigo peasants were exploited. Now the British government will take a serious concern about the plight of these peasants. Their plight will be solved. ठीक है ना. उनके ड्यूज जो है, लीगल ड्यूज जो है, वो क्लियर कर दिए जाएंगे. होता ही है, कुछ लोग जब डिमांड उठती है तो अपना भी पेपर लगा देते हैं कि कुछ कंपेंसेशन हमें भी मिल जाए. एग्रेरियन कमेटी ने कहा भाई जिसका
वैलिड है क्लेम उसको आप मिल जाएगा, ठीक है, एंड द पीजेंट्स डिमांड इज वैलिड. तो द पीपल इन बिहार चंपारण दे सेड दैट गांधीज इंटरवेंशन was successful in solving their concern. ओके, और अंग्रेज डर गए. किससे डर गए? गांधी बाबा से डर गए. नाउ गांधी बिकेम पॉपुलर इन अ स्टेट विच ही नेवर विजिटेड बिफोर. गांधी एक ऐसे स्टेट में पॉपुलर हो गए जहां पहले वो कभी गए ही नहीं थे. गांधी बिकेम पॉपुलर अमॉन्ग द पीजेंट्स. इट मीन्स दैट बिफोर गांधी बिकेम अ नेशनल लीडर ही वॉज अ पीजेंट लीडर. और पॉलिटिक्स में सफल होने के लिए आपको जहां जहां पहुंच बनानी होती है, गांधी वन बाई वन हर जगह पहुंच बनाएंगे. ठीक है, एक क्या हो गया? पीजेंट लीडर. गांधी इमर्ज एज अ पीजेंट लीडर फ्रॉम चंपारण. एंड हियर गांधी गॉट सम इंपॉर्टेंट एसोसिएट्स. ये लोग अब नेशनल मूवमेंट में इनके साथ हो लेंगे. यहीं से बिहार से चले आएंगे गांधी जी के साथ साथ. चलो गांधी बाबा आप जहां रहोगे हम आपके साथ रहेंगे. ठीक है, सो गांधी नाउ इज गेटिंग सम इंपॉर्टेंट एसोसिएट्स, क्लोज एसोसिएट्स. ठीक है, और ये ग्रुप इंडियन नेशनल कांग्रेस में बताओ गांधीयन आइडियाज को सपोर्ट करेगा कि नहीं? ऑब्वियसली. ठीक है, दे आर द कोर सपोर्टर्स ऑफ गांधी. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू राइट दिस पॉइंट. ओके, दैट फाइनली गांधीज इंटरवेंशन इन चंपारण वाज सक्सेसफुल. फाइनली गांधीज intervention in Champaran was successful. Gandhi's intervention in Champaran was successful. Right, next point. Champaran Agrarian Committee was formed. Champaran Agrarian Committee was formed. Champaran Agrarian Committee was formed. And Champaran Agrarian Committee was formed. And this committee gave directions regarding and this committee gave directions regarding abolition of Teen Katia system. This committee gave directions regarding abolition of Teen Katia system. Regarding abolition of Teen Katia system. Right, second point. The committee also directed that the committee also directed that the committee also directed that the previous dues of peasants must be cleared. The previous dues of peasants must be cleared. Previous dues of peasants must be cleared. Previous dues of peasants must be cleared. Right. Here we see that Gandhi's intervention was successful. Here we see that Gandhi's intervention was successful. Here we see that Gandhi's intervention was successful. Now, Gandhi emerged as a peasant leader, or his identity was established as a peasant leader. Now, Gandhi emerged as a peasant leader, or his identity was established as a peasant leader. Gandhi emerged as a peasant leader, and he became popular in a state which he never visited before. And he became popular in a state which he never visited before. वो एक ऐसे स्टेट में पॉपुलर हो गए जहां वो कभी भी विजिट नहीं किए थे. He became popular in a state which he never visited before. Have you got this issue? आपका काम क्या? What is your task now? Solve the PYQ. चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड जितने भी PYQs हैं, solve it. Okay? If in questions you get the name of leaders, उसको हाईलाइट करो. Are you getting my point? ठीक है, टारगेटेड अप्रोच होना चाहिए. जैसे टॉपिक समझ लिया, इससे रिलेटेड पीवाईक्यू मिल रहा है तो उनको इंटरेस्ट के साथ सॉल्व करना है. गॉट इट? ओके, और इससे आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा? बूस्ट होगा. ठीक है. नाउ सेकेंड इशू क्या है? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू. चंपारण के बाद द सेकेंड इशू इज अहमदाबाद मिल स्ट्राइक. काकरा में ए इज व्हाट? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक इशू. सो राइट दिस. द सेकेंड इशू इज अहमदाबाद mill strike. Ahmedabad mill strike issue. Year is 1918. Time क्या है? गुजरात. Sorry, state is गुजरात. और ये क्या है? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक इशू. ये बात हमें समझनी है. पहली प्रॉब्लम क्या है? 1918 is the year.
और 1918 आ जाए तो इसको तुरंत रिलेट कर लेना है किससे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1914 टू 1918, यही है ना, क्लियर। 1918 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। तो आप ये बताओ कि पोस्ट वॉर क्राइसिस, पोस्ट वॉर क्राइसिस और वॉर क्राइसिस, यस, द पीपल विल बी अफेक्टेड बाय दिस वॉर क्राइसिस। वॉर क्राइसिस की वजह से क्या होगा बताओ, इन्फ्लेशन, क्लियर, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्यों होगा, बिकॉज देयर विल बी डिसरप्शन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, लैक ऑफ सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड कमोडिटीज। तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर तो होगा ही मार्केट में, ओके, महंगाई होगी, दिस इज वन प्रॉब्लम, ठीक है। बट जो दूसरी प्रॉब्लम है वो हमें समझनी है, ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, समझो इस बात को। देखो, अहमदाबाद, जो मैंने टाटा पे वीडियो बनाया था उसमें मैंने एक बात कही थी कि देयर वर टू सेंटर्स वेयर देयर वर प्रोमिनेंट इंडियन मर्चेंट्स एंड बिजनेसमैन। एक सेंटर क्या था, बॉम्बे, और दूसरा क्या था, गुजरात, जहां पे इंडियन बिजनेसमैन थे। और बेसिकली वो डील किस चीज में करते थे, बताया था आपको, कॉटन मिल्स थी, ठीक है। एंड दिस इज अहमदाबाद मिल कॉटन मिल, ठीक है। मेरी बात समझ गया। अब इसमें देखो, रिलेट करो इशू क्या है। तो इन अहमदाबाद देयर वर अ क्लास ऑफ इंडियन मिल ओनर्स, देयर वाज अ क्लास ऑफ इंडियन मिल ओनर्स, पहले ही बता चुका हूं, इंडियन बिजनेस क्लास, ओके, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वाज प्रोमिनेंट इन टू रीजंस, वन इज गुजरात और दूसरा बॉम्बे, ठीक है ना। तो इंडियन मिल ओनर्स थे। और दूसरी तरफ देयर वर वर्कर्स हु वर वर्किंग इन दीज इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मिल ओनर्स भी इंडियंस हैं और वर्कर्स भी इंडियंस हैं, ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। Here mill owners are also Indians and the workers are also Indians. Or in Gujarat, there was an outbreak of a disease, outbreak of a disease that is called plague, ठीक है ना। प्लेग डिजीज फैला 1917 में, outbreak of the disease that is called plague. And by this plague, what will happen? Okay, ये एक तरह से communicable disease था, people started dying. और बताओ, अगर वर्कर्स कहाँ रहते हैं, स्लम लाइक हैबिटेशंस में, तो वहां पे ऐसे डिजीजेस के फैलने के चांसेस और भी ज्यादा होते हैं, गॉट इट। तो इसकी वजह से क्या होगा, ओके, ड्यू टू दिस प्लेग, ओके, व्हाट विल हैपन, द वर्कर्स विल स्टार्ट रिटर्निंग टू देयर होम्स। जैसे कोविड के टाइम में सब वर्कर दिल्ली मुंबई गुजरात छोड़ छोड़ के अपने गांव चले गए, वही हो गया। यानी व्हाट विल हैपन, रिवर्स माइग्रेशन विल स्टार्ट। सो ड्यू टू दिस डिजीज व्हाट विल हैपन, रिवर्स migration of workers will start, they will start returning to their homes, that is called reverse migration of workers. So reverse migration of workers will start, they will start returning to their homes. मेरी बात समझ गए। अब इससे क्या होगा, reverse migration of workers से a scarcity of labor, okay, to work in the industries. So this created another challenge, and that is what, a scarcity of labor to work in the industries. मजदूरों की कमी हो जाएगी, scarcity of labor to work in the industries. तो इससे क्या होगा, इंडस्ट्रीज बंद होने लगेंगी। सो द मिल ओनर्स क्या चाहेंगे कि इंडस्ट्रीज चलती रहे, सो दे विल ट्राई टू stop workers, but how you can stop workers? So by giving them plague bonus, the mill owners tried to stop this reverse migration, okay. So read this, now mill owners offered, now mill owners offered plague bonus to the workers. They offered what, plague bonus to the workers to stop this reverse migration, to stop this reverse migration. इस रिवर्स माइग्रेशन को रोकने के लिए प्लेग बोनस ऑफर किया। और ये प्लेग बोनस का अमाउंट कितना था, व्हाट वाज दैट अमाउंट ऑफ दैट प्लेग बोनस। तो अमाउंट था, सपोज योर सैलरी इज 100 रुपीज, ओके, एंड इफ देर इज 100% हाइक इन द सैलरी, सो दिस 100% हाइक वाज द प्लेग बोनस। इसका मतलब अब सैलरी कितनी मिलेगी आप, अगर आप रुक गए तो सीधे सैलरी बढ़ के 100 से कितनी हो गई, 200 रुपीज हो गई। इट वॉज 100% हाइक। वर्कर तो रुक ही जाएगा भाई, कहेगा चलो ठीक है, रिस्क ले ही लेते हैं, 100% हाइक इन द सैलरी, वर्कर्स का रिवर्स माइग्रेशन रुका, गॉट इट। नाउ
व्हाट हैपेंस, प्लेग वाज ओवर। ठीक है, ये बात आपको इतनी बात समझ में आ गई। नाउ प्लेग वाज ओवर, राइट दिस, प्लेग वाज ओवर। अब प्लेग वाज ओवर, प्लेग खत्म हो गया। एंड नाउ व्हेन प्लेग वाज ओवर, मिल ओनर्स तो क्या करेंगे, दे विल से दैट वी आर स्टॉपिंग, वी विल स्टॉप गिविंग यू प्लेग बोनस, हम प्लेग बोनस देना बंद कर देंगे। सो व्हेन प्लेग इज ओवर, मिल ओनर्स अनाउंस्ड दैट, mill owners announced that they will stop giving plague bonus. They announced that they will stop giving plague bonus. plague bonus नहीं देंगे वो, सीधा सीधा उन्होंने कह दिया। ठीक है, अब यही से क्या हो गया, दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ डेडलॉक, दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ डेडलॉक बिटवीन mill owners and workers. This created a situation of deadlock between mill owners and workers. अब देखो क्या था, अब यहाँ पे कहानी क्या थी, 100 plus 100% hike. This 100% hike was plague bonus. Plague bonus. When it was said that now plague bonus will not be given, so workers will say that no, okay, we don't accept this offer. Workers will say that it's okay that you will not give us plague bonus. आप हमें plague bonus मत दो, ये बात समझ में आती है। But this is 1918 and there is post-war crisis. There is inflationary pressure. उस सैलरी में हमारा घर नहीं चल पा रहा है, सो वी नीड 50% हाइक। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम कितना हाइक करें, कितना हाइक चाहिए, 50%। तो नाउ वर्कर्स आर सेइंग दैट ओके, 100% हाइक जो था ये प्लेग बोनस था। उन्होंने कहा कि ठीक है, यू विल नॉट गिव प्लेग बोनस, इट्स ओके, बट वी नीड 50% हाइक, हमें 50% हाइक चाहिए। एंड दिस 50% हाइक ड्यू टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इसका रीजन क्या है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर, इन्फ्लेशनरी प्रेशर। ठीक है, पहले सैलरी कितनी थी, 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 200 रुपीज, ये था प्लेग बोनस, प्लेग बोनस। नाउ वर्क मिल ओनर्स आर सेइंग दैट वी विल गिव यू 100 रुपीज, वी विल नॉट गिव यू प्लेग बोनस। ठीक है, वर्कर्स आर डिमांडिंग वी नीड हाउ मच, 100 प्लस 50% इज इक्वल टू 150 रुपीज। ओके, अगर आप 200 नहीं दोगे तो कितना दो हमें, 150 रुपीज दो। दिस 50% हाइक वी डिमांड ड्यू टू दिस इन्फ्लेशनरी प्रेशर। ठीक है, नाउ द मिल ओनर्स आर ऑफरिंग, अब मिल ओनर्स क्या ऑफर कर रहे हैं, मिल ओनर्स आर सेइंग दैट नो, वी विल नॉट गिव यू 50% हाइक, वी विल गिव यू 25% हाइक। हम कितना देंगे आपको, 20% हाइक, 25% हाइक। इसका मतलब मिल ओनर्स वेर रेडी टू पे हाउ मच, 125 रुपीज। ये एक डाटा लिख रहा हूं जिससे आप समझ पाओ। और मिल वर्कर्स आर आस्किंग फॉर हाउ मच, 150 रुपीज। यही था डेडलॉक, दिस इज द डेडलॉक बिटवीन मिल ओनर्स एंड वर्कर्स। क्लियर हो गया, व्हाट वाज द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक इशू, बेसिकली अहमदाबाद मिल स्ट्राइक इशू, this was a issue of deadlock between mill owners and workers, mill owners and workers. The workers were demanding for how much hike, 50% hike, and the mill owners were offering how much hike, 25% hike. ठीक है, ये डेडलॉक हो गया। आपको चाहिए 50% हाइक, वो कितना दे रहे हैं, 25% हाइक। सो गांधी वॉज इन्वाइटेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, गांधी वॉज इन्वाइटेड टू सॉल्व दिस डेडलॉक, गांधी वॉज इन्वाइटेड टू सॉल्व दिस डेडलॉक। जब आपको लोग मोहल्ले में झगड़ा हो तो उस झगड़े को सॉल्व करने के लिए बुलाने लगे, तो समझ लो कि आपके अंदर लीडर बनने की क्वालिटी है। ठीक है, और अगर आप ही मोहल्ले में झगड़ा कर रहे हो सबसे, तो आप क्रांतिकारी हो। ठीक है, झगड़े की वजह ही आप हो, तो समझ लो भगत सिंह बनने वाले हो। ठीक है, पूरा मोहल्ला आपसे अगर परेशान है तो। चलिए, सो गांधी वॉज इन्वाइटेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। गांधी के सामने ये बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है, दिस अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन बिफोर गांधी, बिकॉज यहाँ पे ब्रिटिश अथॉरिटीज आर नॉट इन्वॉल्व। ठीक है, यहाँ लड़ाई किसके बीच में है, अपनों के बीच में है। तो हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन। ठीक है, गांधी वॉज वेरी स्मार्ट,
आपके पेरेंट्स कौन सा सॉल्यूशन ढूंढते हैं? व्हेन देयर इज अ डेडलॉक, ठीक है, जैसे आप जिद पे अड़ गए कि हमें तो भाई वही दुल्हन चाहिए या वही दूल्हा चाहिए, तो मम्मी पापा क्या करते हैं? जिद पे अड़ जाते हैं। और वो कैसे अपनी बात मनवाते हैं? हंगर स्ट्राइक, ठीक है। आपसे कुछ नहीं बोलेंगे, दे विल बिकम साइलेंट, दे विल कम एंड दे विल यूज व्हाट? हंगर स्ट्राइक, ठीक है। वो कहेंगे नहीं नहीं, ब्रेकफास्ट नहीं चाहिए, लंच नहीं चाहिए, डिनर नहीं चाहिए, 2-3 दिन तक ऐसा करेंगे, फिर क्या करोगे? आप उनकी बात मान जाओगे। एंड दिस इज द अनदर वेपन दैट इज यूज्ड बाय गांधी, राइट दिस, हंगर स्ट्राइक। ये गांधी का अगला खतरनाक वेपन है, हंगर स्ट्राइक। जब भी अपनों से लड़ाई होती है, अपनों के बीच में कोई प्रॉब्लम हो, तो गांधी यही वाला मेथड यूज करते हैं। गांधी विल कम टू अहमदाबाद, किसी को नहीं पता है कि गांधी का फॉर्मूला क्या है झगड़ा सॉल्व करने का, ठीक है। गांधी विल कम, ही विल जस्ट अरेंज अ मीटिंग विथ मिल ओनर्स एंड वर्कर्स, दोनों से बात करेंगे। उसके बाद अपनी चटाई बिछा के वहीं पे हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे, कहेंगे आई एम ऑन हंगर स्ट्राइक, जब तक आप लोग झगड़ा नहीं सॉल्व कर लोगे, ठीक है, तब तक मैं हंगर स्ट्राइक पर रहूंगा, भले ही मेरी जान चली जाए। अब ये दोनों टेंशन में पड़ गए जो इन्होंने बुलाया था। इन्होंने कहा यार हमने इनको बुलाया झगड़ा सॉल्व करने के लिए, और गांधी बाबा खुद ही हंगर स्ट्राइक पे चले गए, कह रहे सॉल्व तुम लोग करो नहीं तो, है ना, मैं चला। अब ये जिम्मेदारी किस पे आ गई? देखो कितना अच्छा तरीका है, कुछ बोला ही नहीं, खुद ही हंगर स्ट्राइक पे चले गए। अब दोनों परेशान, मिल ओनर्स परेशान, वर्कर्स परेशान कि गांधी बाबा का हंगर स्ट्राइक तोड़वाने के लिए हम क्या करें? खुद ही सॉल्यूशन ढूंढ निकाला उन्होंने। एंड व्हाट वाज द सॉल्यूशन? 35% हाइक। दोनों मान गए। गांधी वेंट टू हंगर स्ट्राइक, झगड़ा सॉल्व करने का कितना अच्छा तरीका है, कुछ करना ही नहीं पड़ा। गांधी वेंट टू हंगर स्ट्राइक एंड फाइनली both these groups, mill owners and workers, they reached at a common point that is 35% high, ठीक है, बीच का रास्ता, मिडिल पाथ। एंड गांधी सेड दैट दिस मिडिल पाथ स्ट्रेटेजी इज वेरी गुड, ठीक है, झगड़ा सॉल्व हुआ। सो वेन एवर देर बी एनी प्रॉब्लम, ओके, और डेडलॉक, ओके, फॉर एग्जाम्पल ये मेथड गांधी विल यूज एट सेवरल ओकेजन्स, ओके, कॉम्युनल राइट्स को रोकने के लिए हंगर स्ट्राइक वो यूज करेंगे। पूना पैक्ट में गांधी हंगर स्ट्राइक यूज करेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा, गॉट इट। जब लड़ाई अपनों से हो तो कौन सा तरीका यूज करना चाहिए? हंगर स्ट्राइक। गांधी यूज्ड हंगर स्ट्राइक फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग दिस टाइम, एंड इन दिस वे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक वाज इशू वाज सॉल्व। अच्छा बताओ, गांधी ने जो सॉल्यूशन निकाला, इससे नाराज कौन होगा? मिल ओनर्स या वर्कर्स? कोई नाराज नहीं होगा। So Gandhi will develop good relations with the capitalist class also, and Gandhi will emerge as the leader of workers. ये है politics. So write this point. In this way, Gandhi, in this way, Gandhi emerged as, in this way, Gandhi emerged as, in this way, Gandhi emerged as the leader of workers also. Gandhi emerged as the leader of workers also. Gandhi emerged as the leader of workers also. And he also developed or built, and he also developed or built good relations with the capitalist class. कोई नुकसान नहीं होने दिया, कोई स्ट्राइक नहीं हुआ वर्कर्स का, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी फिर से रिज्यूम हो गई, एंड इन दिस वे ही विल गेट द सपोर्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास, ठीक है। और एक मजेदार बात यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1917 में इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो चुका है? रशियन रिवॉल्यूशन। ये कैसा रिवॉल्यूशन है? सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन। दिस सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन बिलीव्स इन व्हाट? क्लास कॉन्फ्लिक्ट, कि वर्कर्स और कैपिटलिस्ट दोनों के इंटरेस्ट हमेशा क्या होते हैं? कॉन्फ्लिक्टिंग एंड कॉन्ट्राडिक्टरी इन नेचर। गांधी यहाँ आके नई स्पीच दे देंगे। गांधी विल से व्हाट? दैट आई डोंट बिलीव इन क्लास कॉन्फ्लिक्ट, आई बिलीव इन व्हाट? क्लास कोऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे वो पहली बार इस चीज को कहेंगे, राइट दिस, हियर गांधी, हियर Gandhi expressed his ideas about class cooperation. Class cooperation. He rejected the notion of class conflict. ये बात भी यहीं पे क्लियर कर दी इन्होंने कि I believe in what? Class cooperation, not in class conflict. और जैसे ये बात गांधी कहेंगे, आपको क्या लग रहा है? कैपिटलिस्ट क्लास गांधी के सपोर्ट में आ जाएगा कि नहीं? इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस में क्या कैपिटलिस्ट क्लास की मेजॉरिटी थी? यस। बिजनेस क्लास थे मेंबर्स? यस।
So they all will support whom? Gandhi. After this, in Indian National Congress, Gandhi will develop a ardent supporters class for him. That is the class of business और capitalist class. इस घटना के बाद बिजनेस और कैपिटलिस्ट क्लास हमेशा गांधी के सपोर्ट में खड़ा रहेगा. तो गांधी ने किस किस का सपोर्ट जीता? पीजेंट वर्कर्स प्लस बिजनेस एंड कैपिटलिस्ट क्लास. That's why I say that Gandhi was a very okay excellent and smart statesman or politician. ठीक है, यही तो होता है पॉलिटिशियन. ठीक है, कोऑपरेशन, आइडिया ऑफ क्लास कोऑपरेशन. ठीक है ना, कि भाई मिल के हमें आगे बढ़ना है. गॉट इट. कोई क्लास कॉन्फ्लिक्ट जैसी नहीं चीज, कोई रिवॉल्यूशन में वायलेंस जैसी चीजें नहीं होंगी. आई बिलीव इन नॉन वायलेंस. ठीक है. नाउ द थर्ड इशू इज व्हाट? काकरा में तीसरा क्या है? के. ठीक है, दैट इज खेड़ा सत्याग्रह. खेड़ा सत्याग्रह, दिस इज नंबर 3. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन एक है आपके पीवाईक्यू में, तो उसको सॉल्व करना. ठीक है, सी ए के आर ए, तो इस ट्रिक पे सॉल्व हो जाएगा. मेनी टाइम्स द क्वेश्चन आर रिपीटेड आल्सो. ठीक है, बेसिकली रिपीटेशन ऑफ थीम्स. अच्छा, एक दो डिस्कशंस मैं करने वाला हूँ ऑप्शनल के पेपर को, तो वो वीडियो देख लेना आप लोग यूट्यूब पे. ठीक है ना, मतलब पोस्ट कर दूंगा तो देख लेना. उसमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आपके जीएस में काम आ जाएंगे. ठीक है ना, तो दैट इज वेरी गुड. तो जब आप ऑप्शनल की वीडियोस को देखो, नोट्स मेकिंग जरूर करना. there is a greater probability that you will get questions in 2025 because whenever I will discuss, मैं केवल synopsis discuss नहीं करता हूँ, I discuss the entire theme. For example, there is a question, Malwa school painting, Malwa painting. So when I will discuss Malwa painting, I will discuss entire Rajput painting. ठीक है. When I will discuss फिरोज शाह तुगलक इकोनॉमिक पॉलिसीज, तो मेडिवल में भी तो फिरोज शाह तुगलक पढ़ना आपको. इबादत खाना अकबर, तो कुछ ना कुछ आइडियाज आपको मिलेगा. गॉट इट. चलिए, खेड़ा. खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा इज इन गुजरात. एंड व्हाट इज द इशू हियर? ओके, तो इशू देखो क्या है. इन खेड़ा, दिस इशू इज रिलेटेड टू रिच पीजेंट्स. यहाँ पे रिच पीजेंट्स, जिनको पाटीदार्स कहते हैं, इनसे जुड़ा हुआ मामला है. रिच पीजेंट नोन एज पाटीदार्स इन गुजरात प्लस British authorities. Okay, so there are two parties involved here: rich peasants, patidars, and British authorities. ठीक है. अब देखो क्या है. British authorities had given a revenue code. British authorities ने एक revenue code बनाया था, और according to this revenue code, they said that, ठीक है, if due to some okay disaster, if due to some disaster, or you can say that climatic changes, if due to some disaster or climatic changes, the crop production declines to less than 25% of the total crop production, less than 25% of the total crop production. In this situation, remission to the revenues will be given. In this situation, a remission to the revenues will be given. ठीक है ना, कि if due to some disaster, some climatic changes, जैसे मान लो कि आपका नॉर्मल प्रोडक्शन है 100 यूनिट्स, ऐसे हम समझ रहे हैं. नॉर्मल प्रोडक्शन कितना है? 100 यूनिट्स ऑफ फूड ग्रेन्स. ठीक है, बट किसी रीजन की वजह से इफ दिस प्रोडक्शन डिक्लाइंड टू लेस देन 25%, यानी ये 25 यूनिट्स के नीचे चला गया. ठीक है, अगर ये 25 यूनिट्स के नीचे चला गया, 25% लेस देन द एक्चुअल प्रोडक्शन. ठीक है, ऑन नॉर्मल कंडीशंस, इफ यू आर कल्टिवेटिंग 100 यूनिट्स ऑफ फूड ग्रेन, एक यूनिट मैंने ऐसे लिखा, बट ड्यू टू सम क्लाइमेटिक कंडीशंस, इफ द क्रॉप प्रोडक्शन डिक्लाइन टू लेस देन 25%, लेस देन 25%, इन दैट केस आपसे ब्रिटिश गवर्नमेंट रेवेन्यू नहीं लेगी. क्या सच में नहीं लेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट? वो तो लेंगे, उनका बस वो कहते हैं ना कि बस वो दिखाने के लिए, ताकि इन फ्यूचर जब कॉलोनियल हिस्टोरियंस हिस्ट्री लिखे तो उनको फैक्ट वैक्ट मिले अपने बात को प्रूव करने के लिए, कि देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट कितनी अच्छी गवर्नमेंट थी, उन्होंने रेवेन्यू कोड दिया था कि अगर क्रॉप प्रोडक्शन डिक्लाइन होता है तो दे विल नॉट
they will not take the revenues. But what is the actual conditions? In Kheda, the crop production declined to less than 25%. ठीक है, ठीक है, जो क्रॉप्स थे, ठीक है, जैसे कि उनका डिक्लाइन हुआ, लेस देन 25% चले गए, एंड देन द पीपल क्लेम्ड कि अब हमें रेवेन्यू रेमिशन चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन क्या हो गया है, डिक्लाइन हो गया है, एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से हुआ था ऐसा. ड्यू टू दिस एक्सेसिव रेनफॉल, रीजन इज एक्सेसिव रेनफॉल हुआ, और क्रॉप प्रोडक्शन डिक्लाइन टू लेस देन 25%, less than 25%. Now the peasants ने डिमांड किया that according to this revenue code we want a remission of revenue. peasant ने कहा कि भाई जैसा आपने वादा किया था, as like you have promised earlier that we will give you remission, so just give us remission, we will not pay the revenues or will not pay the taxes. Now what the British authorities will say? British authorities will say that your claims are false, आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है, योर क्रॉप प्रोडक्शन इज नॉट डिक्लाइन, वो ज्यादा है 25%, एंड वी विल नॉट गिव यू रिमिशन ऑफ रेवेन्यूज. मैंने कहा ना कि बस वो लिखने के लिए है पेपर. ओके, सो रेड दिस. ब्रिटिश अथॉरिटीज सेड दैट द क्लेम्स ऑफ द पीजेंट्स आर फॉल्स, द क्लेम्स ऑफ पीजेंट्स आर फॉल्स, and they will not be given remission of revenues. ठीक है, claims of peasants are false and they will not be given remission of revenues. British authorities ने ये बात कही कि the claims of peasants are false and they will not be given remission of revenues. ठीक है ना, they will not be given remission of revenues. Now who was invited to solve this problem? किसको बुलाया गया? Gandhi was invited to solve this problem. So read this. Gandhi was invited to solve this problem. Gandhi was invited to solve this problem. गांधी को इनवाइट किया. ब्रिटिश अथॉरिटीज को पता चला अहमदाबाद वाले मामले में तो अंग्रेज नहीं थे ना, चंपारण वाले में थे, खेड़ा वाले में अंग्रेज इन्वॉल्व है. नाउ व्हेन ब्रिटिश अथॉरिटीज विल केम टू नो दैट हु इज कमिंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, गांधी. तो इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर देना है, नहीं तो गांधी क्या करेगा, इस मुद्दे को इंटरनेशनल इशू बना देगा. नेशनल इशू तो दूर की बात है, he will make this issue an international issue. So what, when it will be said that Gandhi is coming to solve this problem, right? This, okay, pressure was mounted on the British government. Pressure was mounted on the British government. Okay. And finally, the British authorities will accept that pressure was mounted on the British government, and finally, the British authorities will accept that the British authorities, finally, the British authorities will accept that, okay, the valid claims, the valid claims of peasants will be settled, the valid claims of peasants will be settled, and the claims of some peasants are valid. Valid claims will be settled, the claims of some peasants are valid. इसका मतलब revenue remission will be given. This is the decision, revenue remission will be given. अब यहाँ पे नोटिस करो आपने, ब्रिटिश अथॉरिटीज का डिसीजन क्या है? The claim of all peasants will be selected or the claim of some peasants will be selected. Claim of some peasants will be selected. तो ये मिडिल पाथ स्ट्रेटजी को गांधी ने फॉलो किया कि नहीं किया? तो गांधी की ये स्ट्रेटजी थी. अगर ये अड़े रह जाते कि नहीं, द क्लेम ऑफ ऑल पीजेंट शुड बी सेटल्ड, तो इससे कोई भी नेगोशिएशन नहीं निकल पाता. एंड दिस इज कॉल्ड मिडिल पाथ स्ट्रेटजी ऑफ Gandhi. So write this, Gandhi accepted this solution. Gandhi accepted this solution. Gandhi accepted this solution. And here also some important leaders came in contact with Gandhi. Or you can say that Gandhi got some important associates here. Gandhi को कुछ important associates मिले. Gandhi got some important associates. वो important associates कौन से हैं? Write the name. One name is इंदुलाल याग्निक. इंदुलाल याग्निक, ठीक है. द सेकेंड नेम इज वल्लभ भाई पटेल. ये वही पॉइंट है जहां पे वल्लभ भाई पटेल किससे आगे जुड़ते हैं? गांधी से जुड़ते हैं. वल्लभ भाई पटेल. बिफोर दिस
Vallabhbhai Patel was practicing law. Got it? And he was not very much influenced by Gandhi. Some of his friends were influenced by Gandhi. They used to listen to Gandhi. जहाँ भी गांधी आते थे उनके स्पीचेस को सुनने जाते थे. But Vallabhbhai Patel never went to listen to the addresses or speeches of Gandhi. ठीक है. वल्लभ भाई पटेल यूज टू क्रिटिसाइज गांधी बिफोर दिस 1918. वो गांधी को क्रिटिसाइज करते थे. कहते थे यार एक ऐसा आदमी है, इससे अगर तुम आज़ादी की बात करोगे कि देश को आज़ादी कैसे मिलेगी, तो वो आपको क्या करेगा कि पूरे एक थैले भर चावल दे देगा और कहेगा इसमें से कंकड़ निकालो, ठीक है, और इस तरह से देश को आज़ादी मिल जाएगी. व्हाट डज इट मीन? व्हाई वल्लभ भाई पटेल इज सेइंग दिस 1918 के पहले? बिकॉज वल्लभ भाई पटेल थॉट दैट गांधीज methods are very much idealistic. ठीक है. They will not be successful in dealing with the practical challenges that India is facing, and that's why Patel was criticizing Gandhi before this. He was saying that Gandhi's solutions are like this. If you will ask Gandhi that हमें आजादी कैसे मिलेगी, Gandhi will give you, okay, a sack of rice or wheat and will ask you that pick stones from it. ठीक है, इसको चुनते रहो और ऐसे देश को आजादी मिल जाएगी. इस तरह से क्रिटिसाइज करते थे वल्लभ भाई पटेल. बट व्हेन वल्लभ भाई पटेल विल कम इन कांटेक्ट विद गांधी, his entire personality will be transformed. He will be a great fan and follower of Gandhi. गांधी के बहुत बड़े फैन बनेंगे और फॉलोअर बनेंगे. And at many occasions in Indian national movement, okay, Patel will listen to Gandhi. पटेल गांधी की बात को मानेंगे. ठीक है. कई जगह पे ऐसा होता है, जो आगे क्वेश्चन किया रहता है. विल डिस्कस दैट लेटर. उसके लिए पटेल वाला वीडियो ही अलग बना दूंगा मैं 31 अक्टूबर. ओके, तो इससे क्या होगा, आप वहां पे जाके थोड़ी प्रैक्टिकल बातों को समझ लोगे. द थर्ड इंपॉर्टेंट नेम हियर इज अनुसुईया साराभाई. अनुसुईया साराभाई. ठीक है, इट्स नॉट भाई, इट्स बहन. ठीक है, अनुसुईया साराभाई. अंबालाल साराभाई. ठीक है, के सिस्टर हैं अनुसुईया साराभाई. तो in regional experiments, by these regional experiments, what happened? Gandhi got some important associates. Okay, and they will be important associates of Gandhi in this entire national movement. जैसे राजेंद्र प्रसाद इनको मिले, राजकुमार शुक्ल मिले, वल्लभ भाई पटेल मिले. रीजनल एक्सपेरिमेंट में ही तो मिले वल्लभ भाई पटेल. खेड़ा इशू में महादेव देसाई, इंदुलाल याग्निक, शंकरलाल बैंकर, राजेंद्र प्रसाद, मेनी इंपॉर्टेंट बिजनेस कैपिटलिस्ट क्लास. ठीक है ना. तो इनसे इनकी मुलाकात होती है. नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? 3 रीजनल एक्सपेरिमेंट्स गांधी हैड सक्सेसफुली हैंडल्ड. चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा. इन दोनों से वो कहाँ पॉपुलर हो गए? गुजरात में. बाय दिस ही बिकेम पॉपुलर इन बिहार. ही बिकेम पॉपुलर अमॉन्ग पीजेंट्स. अहमदाबाद से ही बिकेम पॉपुलर अमॉन्ग बिजनेस क्लास. ही बिकेम पॉपुलर अमॉन्ग वर्कर्स. ठीक है. खेड़ा से ही बिकेम पॉपुलर अमॉन्ग पीजेंट्स. He was already a leader of international reputation, okay, and this we can say due to his achievements in South Africa. But national politics में इनकी इंटर कैसे होती है? How Gandhi entered into the national politics? This we need to understand. National politics. Entry of Gandhi in national politics. This we need to understand. How Gandhi entered into the national politics. Clear? So Gandhi entered into the national politics with the famous Rowlatt Satyagraha. Now we need to understand that what is this Rowlatt Satyagraha? What is this Rowlatt Satyagraha? We need to understand. ठीक है ना? We need to understand what is this Rowlatt Satyagraha. तो देखो, अब यहाँ पे एक स्केच ड्रॉ करो जिससे आप समझ पाओगे. What is the sketch? तो राइट 1905 190708. Draw this sketch. This is स्वदेशी मूवमेंट. ये स्वदेशी मूवमेंट है. ठीक है. Got it? Now 190708 में क्या हुआ? स्वदेशी मूवमेंट डिक्लाइंड. स्वदेशी मूवमेंट डिक्लाइंड.
And after this phase, what happened? Revolutionary activities started. Draw this structure. Revolutionary activities started. We all know this. After this phase, what is happening? Revolutionary activities started, and this is what? First phase of revolutionary activities. और ये कब तक कंटिन्यू रहा ये आप जानते हो पहले से 1920 तक, बिकॉज दिस इज द पीरियड ऑफ एनसीएम. ये क्या है? एनसीएम, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज. रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में क्या है? एक्सट्रीमिज्म. दिस इज व्हाट? एक्सट्रीमिज्म. और एक्सट्रीमिज्म में द कल्ट ऑफ रिवॉल्वर एंड बॉम्ब. द कल्ट ऑफ रिवॉल्वर एंड बॉम्ब. दिस इज एक्सट्रीमिज्म विद द कल्ट ऑफ रिवॉल्वर एंड बॉम्ब. इस कल्ट को फॉलो कर रहा है. रिवॉल्वर, बॉम्ब आ गया, पिस्टल आ गया, पॉलिटिक्स आ गया. ठीक है. और रिवॉल्यूशनरीज क्या कह रहे हैं? रिवॉल्यूशनरी आर सेइंग दैट वी विल क्रिएट अ सेंस ऑफ फियर इन द माइंड्स ऑफ ब्रिटिश पीपल एंड दे विल लीव इंडिया. उनके दिमाग में हम क्या करेंगे? डर पैदा करेंगे. और डर कैसे पैदा करेंगे? बाय इंडिविजुअल किलिंग्स. इंडिविजुअल किलिंग्स ऑफ, ओके, यूरोपियन ऑफिशियल्स. नॉट ऑल यूरोपियन ऑफिशियल्स. वहां पे भी वो किसको जान से मारने की बात कर रहे हैं? Those officials who are not sensitive for the Indian people, जो इंडियन लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करने की बात है. ओके, तो दे बिलीव इन इंडिविजुअल किलिंग्स, दे बिलीव इन द कल्ट ऑफ रिवॉल्वर एंड बॉम्ब. एंड ड्यूरिंग द सेम पीरियड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्टेड. इसी पीरियड में क्या हो जाता है? वर्ल्ड वॉर वन स्टार्टेड. ड्रॉ द स्ट्रक्चर. 1914 टू 1918. दिस इज द पीरियड ऑफ वर्ल्ड वॉर वन. एंड इन वर्ल्ड वॉर वन ब्रिटेन वॉज इंगेज्ड. वर्ल्ड वॉर वन में ब्रिटेन इंगेज था. एंड दिस इज द फेज ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज. तो बताओ, रिवॉल्यूशनरीज एक्टिविटीज विल क्रिएट एन एडिशनल चैलेंज फॉर ब्रिटिश अथॉरिटीज और नॉट? यस, क्योंकि उनका पूरा ध्यान कहाँ लगा हुआ है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में. एंड रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज आर क्रिएटिंग एन एडिशनल चैलेंज. तो बताओ, वॉज इट एसेंशियल फॉर द ब्रिटिश अथॉरिटीज टू कर्ब रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज? रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को रोकना जरूरी था कि नहीं? जरूरी था, बिकॉज रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में क्या हो रहा था? वायलेंस भी हो रहा था. ओके, सो राइट दिस पॉइंट दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड ब्रिटिश वेर ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ड्यूरिंग दिस पीरियड ब्रिटिश वेर already involved in first world war. During this period british were already involved in first world war. अंग्रेज पहले से ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व थे. they were already involved in first world war. ठीक है. next point, write this. And due to this they wanted to curb or check the revolutionary activities in India. Due to this they wanted to curb or check the revolutionary activities in India. इसीलिए वो इंडिया में revolutionary activities को रोकना चाहते थे. They wanted to curb or check revolutionary activities in India. ठीक है. And right, for this reason, इसी स्ट्रक्चर में लिखना 1917. देखो, ये भी है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान. For this reason, in 1917, right, the British government appointed a committee. 1970s, the British government appointed a committee. Okay, under the chairmanship of Sidney Rowlett. Under the chairmanship of Sidney Rowlett. और ये लड़की नहीं है, सर सिडनी राउलेट. ठीक है, सिडनी नाम सुन के लगा लड़की वड़की होगी, ऐसा नहीं है. अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर सिडनी राउलेट. ठीक है, सर सिडनी राउलेट. ओके, अ कमीशन, अ कमिटी वाज अपॉइंटेड एंड दिस इज नोन एज राउलेट कमीशन. इसी को कहते हैं हम राउलेट कमीशन. राउलेट कमीशन. तो राउलेट कमीशन कब अपॉइंट हुआ? 1917. Who was the chairman of this Rowlett Commission? Sir Sidney Rowlett. Now, what was the task that was given to this commission? Task क्या दिया गया? Right, point one. Task क्या था इसका? Okay, to give recommendations about how to curb or check the growth of revolutionary activities in India. ये था. ठीक है. To give recommendations on how to check the growth of revolutionary activities in India.
okay, to give recommendations on how to check the growth of revolutionary activities in India. ठीक है, इसी पे क्या देना था, रिकमेंडेशन देना था. Got it? Now, read this. Read this. The recommendations were further incorporated into these recommendations were further incorporated into गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990. गवर्नमेंट ने ये कहा कि देखो इसके बाद हम अगला लेजिस्लेटिव रिफॉर्म लाने जा रहे हैं, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. तो द रिकमेंडेशंस विल बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द एक्ट ऑफ 1919. मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में इसके रिकमेंडेशंस को क्या किया जाएगा, एकोमोडेट किया जाएगा. ओके, its recommendations will be accommodated in act of 1919. And now what are the important points of Sydney Rowlett recommendations? क्या है important points? Important points क्या है? So the important points was, right, point 1, important points क्या है? Authorization to the government to search and arrest, giving authorization to the government. Point 1, giving authorization to government, giving authorization to government to search and arrest without warrant, giving authorization to government to search and arrest without warrant. अभी अगर ये अधिकार मिल जाए गवर्नमेंट को, पुलिस को, तो क्या होगा, विदाउट वारंट दे कैन सर्च एंड दे कैन अरेस्ट यू. दूसरी बात क्या है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट डिटेंशन विदाउट ट्रायल फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 2 years. 2 साल तक आपको जेल में डाल देंगे, बताएंगे नहीं किधर भेज दिया, किस जेल में भेज दिया, क्यों भेज दिया, आपके घर वालों के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे 2 years तक. ठीक है, डिटेंशन विदाउट ट्रायल, डिटेंशन विदाउट ट्रायल up to 2 years, detention without trial up to 2 years. Now tell me, looking at these points in the recommendations, can we say that this was a black act? Was the purpose of this act, okay, to suppress the national movement in India? Yes, national movement को ही suppress करना है इसका ऑब्जेक्टिव था. ठीक है, बताओ फिर कौन नेशनल मूवमेंट में भाग लेगा? तुमको पता है कि पुलिस अरेस्ट करेगी और 2 साल तक बताएगी नहीं तुम्हारे घर वालों को कहाँ ले गई, तो इससे डिस्करेज होगा कि नहीं नेशनल मूवमेंट, ऑब्वियसली. सो इन द नेम ऑफ कर्बिंग रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, व्हाट वाज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव? द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वाज टू सप्रेस द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. ये था सबसे अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव. क्लियर? सो रेड दिस. This was highly criticized and Indians called it Black Act. Indians opposed it. Indians called it Black Act. Right? Black Act, right? The main purpose behind these recommendations was to curb the growth of nationalism in India. The main purpose behind this recommendation was the main purpose behind this recommendation was to curb the growth of revolutionary activities in India, to curb the growth of revolutionary activities and to discourage nationalist tendencies or the growth of nationalism in India. मतलब नेशनल मूवमेंट को कमजोर करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन टारगेट था इसका. गॉट इट? तो इसका सभी लोगों ने अपोज किया. गांधी अपोज्ड इट एंड लॉन्च्ड अ सत्याग्रह अगेंस्ट दिस. गांधी ने किस चीज का अपोज किया? राउलेट एक्ट का. एंड अपोजिंग दिस राउलेट एक्ट को अपोज करते हुए, अपोजिंग दिस राउलेट एक्ट, Gandhi launched a satyagraha. Gandhi launched a satyagraha, and the name of this satyagraha is Rowlatt Satyagraha. Rowlatt Satyagraha. तो ऑब्वियस ईयर क्या होगा राउलेट सत्याग्रह का? 1919 ही तो होगा ना. ठीक है, राउलेट सत्याग्रह. गांधी स्टार्टेड द सत्याग्रह एंड दिस इज राउलेट सत्याग्रह. बट इस सत्याग्रह की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? Did it got the official support or platform of Indian National Congress? The answer is no. तो देखो,
दिस राउलेट सत्याग्रह इज अ नेशनल इशू, ये कोई रीजनल इशू नहीं है. दिस राउलेट सत्याग्रह इज अ नेशनल इशू. दिस राउलेट सत्याग्रह, okay, Gandhi provided leadership to this Rowlatt Satyagraha. This is also true. But this Rowlatt Satyagraha failed to get, this Rowlatt Satyagraha failed to get official support or platform of Indian National Congress. ठीक है ना? This Rowlatt Satyagraha failed to get official support or platform of Indian National Congress. Okay, right. Many important leaders of INC did not support Gandhi in this Rowlatt Satyagraha. Many important leaders of INC did not support Gandhi, did not support Gandhi in this national satyagraha. Many important leaders of INC did not support Gandhi in this national satyagraha. ठीक है, जैसे किन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया? एनी बेसेंट सपोर्टेड और डिड नॉट सपोर्ट? नहीं सपोर्ट किया. राइट, नेक्स्ट पॉइंट. एस एन बैनर्जी, इसका एक और रीजन है. और रीजन क्या है? इसी मुद्दे के साथ गांधी नेशनल लीडर बनेंगे, और जब नेशनल लीडर बनेंगे तो कांग्रेस में ऑलरेडी बड़े बड़े लीडर हैं. कहाँ किसी को अच्छा लगेगा कि अचानक कोई आदमी आए, ठीक है, और सबका बना बनाया मार्केट क्या कर दे? खराब कर दे. नहीं डाइजेस्ट होगी लोगों को चीजें. राइट, सो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, राइट, एस एन बैनर्जी, एस एन बैनर्जी डिड नॉट सपोर्ट. तेज बहादुर सप्रू डिड नॉट सपोर्ट. टीबी सप्रू डिड नॉट सपोर्ट. टीबी सप्रू डिड नॉट सपोर्ट. टीबी सप्रू डिड नॉट सपोर्ट. इस समय तिलक कहाँ चले गए थे? इंग्लैंड. राइट, तिलक वाज नॉट इन इंडिया, तिलक वाज इन इंग्लैंड. ठीक है, वो वैलेंटाइन शिरोल के ही पीछे पड़े हुए थे. ठीक है, तिलक वाज इन इंग्लैंड, बट हिज मेन फॉलोवर्स, बट हिज मेन फॉलोवर्स, तिलक्स मेन फॉलोवर, तिलक के मेन फॉलोवर में एक थे एनसी केलकर, और दूसरा इंपॉर्टेंट नेम है जीएस खरपड़े. जीएस खरपड़े, एनसी केलकर एंड जीएस खरपड़े, they also did not support. Tilak's main followers, okay, GS खरपड़े and NC केलकर did not support. तो ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि Gandhi's issue is not supported by some prominent members of Indian National Congress. Gandhi did not got official support and platform of Indian National Congress. This satyagraha is led by Gandhi. This issue is a national issue. Satyagraha is a national satyagraha. बट इसकी वीकनेस क्या है कि यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का फुल सपोर्ट और कोऑपरेशन नहीं है. ठीक है ना? इन नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस द मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज इन द रॉलेट सत्याग्रह, एंड आई विल डिस्कस जलियांवाला मैसेकर which is related to this रॉलेट सत्याग्रह इशू. ठीक है, इस मुद्दे को अगली क्लास में डिस्कस करेंगे. गॉट इट? अब आपको करना क्या है? पीवाईक्यू की बुक ओपन करो, और जहां जहां से जो जो रिलेटेड क्वेश्चंस मिल रहे हैं, रिलेटेड क्वेश्चंस मींस जो पढ़ लिया वो क्वेश्चन आपको दिखा तो आपको क्या करना है? यू विल ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. और सॉल्विंग द क्वेश्चंस मींस आप थोड़ा ऑप्शंस को पढ़िए, और उसमें जो चॉइसेस दी गई हैं वो कैसे सेट किया गया. ऑप्शन में स्टेटमेंट है, अगर कोई स्टेटमेंट गलत हो रहा है तो कैसे हो रहा है, जस्ट थिंक ओवर दीज इश्यूज ऑल्सो. ठीक है, जस्ट ट्राई टू फॉलो द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन कि कैसे वो स्टेटमेंट फ्रेम करते हैं. एलिमिनेशन मेथड, हाउ इट विल वर्क ऑन दीज क्वेश्चंस. ठीक है ना? हाउ स्मार्ट गेस टेक्निक कैन बी यूज्ड. देखो, यूपीएससी ऐसा एग्जाम है ना, मतलब पूरे इस एग्जामिनेशन सिस्टम में यूपीएससी इज द सिंगल एग्जाम व्हिच गिव्स यू अ लॉट ऑफ स्कोप टू यूज योर स्मार्ट गेस टेक्निक इन प्रीलिम्स आल्सो, मेंस आल्सो, दोनों जगह पे है. बट इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. जिस दिन ये बात आप समझ जाओगे, आपके लिए एग्जाम क्या हो जाएगा? कंपैरेटिवली थोड़ा आसान तो हो ही जाएगा. ठीक है, तो थोड़ा उसको भी समझने की कोशिश करना है, रोट लर्निंग नहीं. हाँ, फैक्ट्स को पढ़ो, क्वेश्चन को 5 और 10 टाइम्स रीड करो, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म बिहाइंड दीज क्वेश्चंस. ठीक है, गॉट इट? सो इन नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट अगेन फ्रॉम द सेम टॉपिक, रॉलेट सत्याग्रह. ओके, what happened during this rowlatt satyagraha we'll discuss in the next class. Any question, any one of you? कोई क्वेश्चन है? शताक्षी is asking when will we begin weekly essay practice. ठीक है, राइट नाउ आई एम रिकॉर्डिंग वीडियोस. ठीक है, तो कुछ वीडियोस मैं रिकॉर्ड कर लूँ. एटलीस्ट माई टारगेट इज टू रिकॉर्ड
100 वीडियोस, ठीक है, ताकि उसको यूट्यूब पे मैं पोस्ट कर दूं, ठीक है, तो दूसरों की भी दुकानदारी थोड़ी खराब होती रहे, ठीक है, फिर देखते हैं, ठीक है, आई विल मेक प्लान, मजाक कर रहा था, आई वाज जस्ट जोकिंग, ठीक है, ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, वेलकम।